Without any further delay, let us begin with today's session. Welcome to the session 3 of Android Jams. Hoping you all are following the track provided to all positively. It's very thoughtful quote. An app is not about technology. It's a dream towards future. Very well said. Technology is easily approachable. But the thing that makes you a developer is the vision, thought process, and your dreams to be realistic and different from others. In our last session, we focused on tip calculator, UI in Android, conditional statement if else, where and well, arrays, loops, functions, classes, giving you all a complete package of learning and exposure to Android. For your practice and execution, we gave you an assignment based on Unit 3, Navigation, and Unit 4, Connect to Internet, respectively. Hope you all have done it and earned badges for yourself. Also, to keep your homework interesting, an app was also given to develop named Dice Roller app. Hope you all have made it and flexing in your friends. In addition, In addition, I would like to give you a briefing about the app. The app used to show an OK button in the display, and when you click on app, the dice rolls showing the number 1 to 6 as the result. Now coming to the session that we have planned for you today. We will be having two units, namely Unit 5 Data Persistence, where you can earn two badges, and Unit 6 Work Manager, where you can earn one badge respectively. I hope you all are clear to the session ahead. I would like to call Abhi Khandelwal to continue. Thank you. Thank you, Vish. Can you just a second? I will share my screen. First of all, Merry Christmas to all of you. Thanks for joining us in this session. My screen is visible. Yeah, yeah. ओके सो मतलब हमने लास्ट सेशन में क्या करा था हम लोगों ने अभी तक कर लिया हम लोगों ने फर्स्ट सेशन में कर लिया था कि कॉटलिन बेसिक्स क्या होते हैं कॉटलिन के कंडीशंस क्या कॉटलिन में कौन कौन से बेसिक्स होते हैं वेयर एंड वेल इफ एल्स वगैरह और सेकंड सेशन में हम लोगों ने कर लिया था कि बेसिक हम कॉटलिन का यूज करते हुए एक सिंपल हमने ऐप बनाया था टिप कैलकुलेटर ऐप तो कितने लोगों ने मतलब उसको बाद में प्रैक्टिस करी थी बाद में ट्राई करा था बनाने का आप हैंड रेज कर सकते हो गुड गुड चलो साउंड्स ग्रेट तो अब बेसिकली ये तो हमारा हो गया हमारा बेसिक्स ऐप हो गए अब हम लोगों को थोड़ा एडवांस मूव करना है फर्दर हमें थोड़ा एडवांस चीजें सीखनी है तो हम बेसिकली आज के सेशन में हम तीन टॉपिक कवर करेंगे फर्स्ट इज आवर एंड्रॉइड आर्किटेक्चर कंपोनेंट एंड सेकंड वन इज आवर डेटा परसिस्टेंस एंड थर्ड वन इज आवर वर्क मैनेजर so we will start from our first topic is that is the Android architecture component. First of all, first of all, Android architecture component is an important consideration for ensuring that your apps are robust, testable, maintainable. Like आप लोगों ने ऐप बना लिया अब आप लोग ये भी तो चाहते हो ना कि इंडस्ट्री लेवल का ऐप बने मेरा ऐप थोड़ा रोबस्ट हो टेस्टेबल हो मेंटेन करना उसको काफी इजी रहे तो हमें थोड़ा हायर लेवल का ऐप बनाना है ना तो बेसिकली एंड्रॉइड प्रोवाइड्स a set of libraries and components to help you put together your app according to the best practices. बेसिकली एंड्रॉइड ने 2017 में एंड्रॉइड आर्किटेक्चर कंपोनेंट से हमें क्या था इंट्रोड्यूस करा था तो बेसिकली सिंपली जिससे कि हमारा ऐप बेसिकली रोबस्ट बनता है टेस्टेबल बनता है मेंटेनेबल बनता है हमें कुछ नहीं करना फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शेयर माय या बेसिकली एंड्रॉइड आर्किटेक्चर कंपोनेंट आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि हमें हर ऐप में अगर हमने एंड्रॉइड आर्किटेक्चर कंपोनेंट का फॉलो कर लिया हर ऐप में तो हमारा ऐप काफी ज्यादा इंडस्ट्री लेवल ऐप बन सकता है basically we have four layers in this android architecture component first one is the our room database
बेसिकली रूम डेटाबेस यू कैन से SQLite। कितने लोगों ने SQL का नाम सुना है अभी तक इस सेशन में आने से पहले? SQL का नाम? Yes, sir. SQL and MySQL also. Yeah, you can write in chat section. Sequence query language. Okay. या तो ओके, तो बेसिकली हमारी जो फर्स्ट लेयर होती है दैट इज आवर रूम डेटाबेस, या यू कैन से SQLite लेयर। बेसिकली इट मैनेज आवर लोकल डेटा। हमारे जो ऐप का लोकल डेटा होता है उसे मैनेज करती है डेटा सोर्स के थ्रू। अब हम लोग ये पूरा ये जो सारे ये जो कंपोनेंट्स है इसे हम पहले प्रोजेक्ट के थ्रू भी समझेंगे। तो सिंपली हम ऐसा करते हैं, हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हम ज्यादा बिलीव करते हैं, तो प्रोजेक्ट से स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम आवर प्रोजेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज के सेशन में एक ये प्रोजेक्ट ऐप बनाने वाले हैं जिसमें सिंपली एक नोट्स ऐप है। मतलब हमारे पास एक एडिट टेक्स्ट है, इसमें जैसे भी हम कोई वैल्यू डालेंगे और सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो डेटाबेस में ये सेव हो जाएगा। ऐप डेटाबेस के अंदर ये सेव हो जाएगा, और जैसे ही हमारा ऐप क्रैश, हम इसमें डिलीट भी कर सकते हैं, लाइक हमने डिलीट ऑप्शन भी लगा रखा है। जैसे ही हमारा ऐप हम इसको क्रैश भी होगा ऐप, तो हमारा डेटा हमारे डेटाबेस में सेव रहेगा। फर्स्टली लेट मी शेयर माय एमुलेटर, show some, just give me a second. My emulator is visible to everyone? Hello? Yes, sir. Visual. Yes, sir. Yeah. Okay. तो सिंपली हमारा ऐप कुछ नहीं है, हमने सिंपली एक नोट्स ऐप बना रखा है। इसमें हम इसमें जैसे मैंने स्टार्टिंग में 2 पहले से ऐड कर रखे हैं डेटाबेस के अंदर। वेलकम टू एंड्रॉइड स्टडी जैम सेशन 3 एंड होप यू ऑल एंजॉयड आवर प्रीवियस सेशन। तो सिंपली हम ऐसे कुछ भी हम इसमें एंटर करते हैं ना, लाइक हम कुछ भी डेटा हमने डाला और सबमिट बटन पे क्लिक करा तो हमारे डेटाबेस में शो हो गया और यहाँ पे ये स्टोर हो गया। लाइक हम इसको डिलीट कर रहे हैं तो ये हमारे डेटाबेस से परमानेंटली डिलीट हो गया। लाइक मैं इस ऐप को बंद करता हूँ, दोबारा इस ऐप को ओपन करता हूँ। पहले मैं इसको क्रैश कर लेता हूँ, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। या अब मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ तो डेटा हमारे पास हमें सेव मिलना चाहिए हमें। जी या लाइक यू कैन सी हमारा डेटा है ना, हमारे डेटाबेस में सेव है। तो यहाँ पे ये हमारा डेटा, हमारे सारा डेटा, जितने भी डेटा हमने सेव कर रखे हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो हमें बेसिकली यही ऐप बनाना है, बट विद द यूज एंड्रॉइड आर्किटेक्चर कंपोनेंट। SQL के थ्रू डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, बट लेकिन एंड्रॉइड एंड बेसिकली लेकिन हमारे ऐप को हमें रोबस्ट, टेस्टेबल एंड मेंटेनेबल बनाना है, तो हमें एंड्रॉइड आर्किटेक्चर कंपोनेंट का यूज करना पड़ता है। तो मैं सिंपली प्रोजेक्ट से स्टार्ट करता हूँ। आर यू एक्साइटेड? Yes, sir. Yes, sir. मेरी स्क्रीन विजिबल है एंड्रॉइड स्टूडियो वाली? Yes, visible है। या तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारी रूम डेटाबेस की हमारी जो फर्स्ट लेयर होती है वो रूम होती है, तो उसे हम क्रिएट करते हैं। बेसिकली रूम क्या होता है? रूम इज ए persistence library, part of the Android architecture component. It makes it easier to work with the SQLite database object in our app. बेसिकली डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ बॉयलरप्लेट कोड। तो पहले हम जो SQL के थ्रू हमारा डेटाबेस क्रिएट करते थे ना, तो बेसिकली बहुत ज्यादा बॉयलरप्लेट कोड है ना हमें यूज करना पड़ता था, बहुत ज्यादा कोड लिखना पड़ता था। तो लेकिन ये बेसिकली बहुत सारा बॉयलरप्लेट कोड हमारे लिए कम कर देती है। एंड वेरीफाइंग अवर SQL क्वेरीज एट द कंपाइल टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो क्रिएट करते हैं हमारा रूम। तो मैं एक कॉटलिन क्लास बना रहा हूँ सिंपली। इसका नाम दे देता हूँ मैं नोट करके। ओके, विजिबल है आपको लोगों को मैं जो क्लास बना रहा हूँ? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Visual. तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें डेटाबेस में क्या डालना है? जो हम टेक्स्ट ले रहे हैं, जो हमने अभी आपको दिखाया था कि जो हम एडिट टेक्स्ट में जो वैल्यू आ रही है उसे हमें सेव करना है। तो उसको कैसे कर सकते हैं? वेरिएबल के थ्रू हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? लाइक मैंने एक वेरिएबल बना लिया वेल टेक्स्ट नेम का, एंड द टाइप ऑफ द वेरिएबल इज स्ट्रिंग। साथ में एक हम डेटाबेस में आईडी भी बना लेते हैं, लाइक कि हमें एक्सेस करना हो बाद में कभी इन फ्यूचर। तो सिंपली वेल आईडी एंड टाइप ऑफ आईडी इज इंट। ओके। अब हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल किसी को पता है प्राइमरी की क्या होती है? एसक्यूएल में प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की सर एक यूनिक की जनरेट होती है। या परफेक्ट।
तो सिंपली हम यहाँ पे हमारी जो आईडी है ना, इसको एक प्राइमरी की बना देते हैं। प्राइमरी की, क्योंकि हमें यूनिक की बनानी, तो आईडी प्राइमरी की का काम कर सकती है हमारे लिए। तो सिंपली हमने इसको प्राइमरी की बना दिया आईडी को। ओके, ठीक है ना? ये हो गया। इसके अलावा और इसमें हम ऐसा कर देते हैं, आईडी को हम इनिशियलाइज भी कर देते हैं 0 से, और अपने आप है ना आईडी हमारी इंक्रीज होती चल जाएगी। जैसे कोई नया डेटाबेस एंटर होगा तो इसको ऑटो जनरेट शुरू कर देते हैं हम। बेसिकली ऑटो जनरेट यहाँ पे ये काम कर रहा है, हमारी आईडी को अपने आप इंक्रीज कर देगा। और सिंपली हम इसे ऐसा करते हैं, टेक्स्ट को हमें हमारे उसमें स्टोर करना है ना, इसमें डेटाबेस में। तो बेसिकली कॉलम के थ्रू करेंगे, तो कॉलम का नेम भी दे देते हैं हम यहाँ पे, कॉलम इन्फो इक्वल्स टू टेक्स्ट कॉलम इन्फो। और कॉलम के इन्फो में हम इसका नेम दे देते हैं, नेम इक्वल्स टू टेक्स्ट। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब बेसिकली हमें ये हो गया हमारा काम। नोट हमने एक डेटाबेस रूम डीबी बना लिया है। अब इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक एनोटेशन लगाना है एंटिटी करके। बेसिकली एंटिटी वही काम करती है जो हमारा एसक्यूएल में टेबल का नेम डिक्लेयर करते हैं ना, वही सेम काम हमारी एंटिटी करती है, जो टेबल का नेम डिक्लेयर करते हैं हम। तो सिंपली हम वो कर लेते हैं, एंटिटी क्रिएट कर ली हमने। एंटिटी में टेबल का नेम दे देते हैं, जैसे हम एसक्यूएल में टेबल का नेम देते हैं। सिंपली एंटिटी टेबल नेम इक्वल्स टू क्या दिया जाए, नोट टेबल दे देता हूँ अभी के लिए। और अगर और कुछ देना था आप और अपने हिसाब से और कुछ भी दे सकते हो टेबल नेम। तो ये बेसिकली हमारा रूम बन चुका है, रूम डेटा बन चुका है। बेसिकली अब हमारे एंड्रॉइड आर्किटेक्चर कंपोनेंट की सेकंड लेयर होती है डाउ। अब हमने रूम तो बना लिया, अब बोलोगे सर इसको एक्सेस भी तो करने के लिए मतलब ऑब्जेक्ट होने चाहिए ना। तो हम इसको एक कॉटलिन प्रोवाइड करता है डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, डाउ क्लासेस होती है। इसके थ्रू हम किसी भी रूम डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली यहाँ पे एक डाउ क्लास बनानी होगी, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट क्लास। तो सिंपली क्रिएट करते हैं, कुछ नहीं, वही कॉटलिन वही मेथड। इसको इंटरफेस इसको नॉट डाउ करके मैं क्लास बना देता हूँ एक, नॉट डाउ। ये बेसिकली क्लास नहीं होती, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इंटरफेस। इंटरफेस और क्लास के बीच में डिफरेंस इतना ही होता है कि इंटरफेस इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, मतलब ये अपने मेथड को ये बेसिकली पार्शियली क्लास होती है। ये पूरी क्लास नहीं होती, पार्शियली क्लास होती है, अपने चाइल्ड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इसे हम। और इसमें हम एनोटेशन लगा देते हैं डाउ का। अब हमें क्या करना है, कौन-कौन सी हमें फंक्शनैलिटी ऐड करनी है हमारे इसमें। अब इंसर्ट करना है, हमें डिलीट करना है, और इसके अलावा क्या करना है, इंसर्ट कर दिया, डिलीट कर दिया, और हमें उसको वहाँ पे लिस्ट को शो करना है वहाँ पे जाके। तो सिंपली हम 3 फंक्शन बना लेते हैं, इंसर्ट, डिलीट और गेट ऑल नोट्स करके। सिंपली मैंने इंसर्ट फंक्शन बना लिया, और इसमें मैं डाल रहा हूँ नोट को मैं इंसर्ट कर दूंगा मैं इसको अभी। ठीक है, और सिंपली मैंने एक डिलीट फंक्शन बना लिया। आप लोगों को ये मैक्सिमम आप कोई सा भी ऐप बनाओगे तो आपको एंड्रॉइड आर्किटेक्चर कंपोनेंट के लिए यही चीजें फॉलो करनी होगी, अपने ऐप के अकॉर्डिंग चेंज करके। सेम पैटर्न फॉलो होगा, आप कोई सा भी ऐप बना लो। सिंपली इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया। उसके बाद तीसरी चीज होती है, ऐसा करते हैं हमें शो भी तो करना है ना चीजों को, तो सारे आइटम को एक साथ चाहिए भी हमें, तो एक फंक्शन बना लेते हैं, गेट ऑल नोट्स करके। कुछ भी बना सकते हो आपके नेम के अकॉर्डिंग। और इसमें क्या चाहिए, लिस्ट में स्टोर कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारा डेटा होगा तो हम लिस्ट में स्टोर कर देते हैं, सही तरह से मैनेज रहेगा, लिस्ट नोट करके। ठीक है, आई गेस या इसको एक काम और करते हैं, इसको लाइव डेटा के थ्रू भी बाइंड कर देते हैं हम। लाइव डेटा बेसिकली एज ए ऑब्जर्वर काम करता है हमारे एंड्रॉइड के अंदर, मतलब कि हमें एज ए ऑब्जर्वर की लाइव डेटा का काम एंड्रॉइड में कुछ नहीं होता, एज ए ऑब्जर्वर की तरह काम करता है। अनलाइक ए रेगुलर ऑब्जर्वर, लाइव डेटा इज ए लाइफ साइकिल अवेयर। यू लाइफ साइकिल अवेयर की तरह काम करता है, मीनिंग इट रिस्पेक्ट्स द लाइफ साइकिल ऑफ अदर ऐप कंपोनेंट्स such as activities, fragments, services. This awareness ensure live data only updates app component observed that are in the activity life cycle. बेसिकली सिंपली आप यही समझ सकते हो कि लाइव डेटा बेसिकली एज ए ऑब्जर्वर काम करता है, और लाइफ साइकिल अवेयर पे काम करता है एज ए। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, या एक एनोटेशन लगा देना इंसर्ट। देखो कितना इजी काम हो गया, हमने इंसर्ट एनोटेशन लगाया और हमारा इंसर्ट वाली फंक्शनलिटी पूरी हो गई। जो हम पहले एसक्यूएल में पूरा इंसर्ट के लिए अलग से हमें कोड लिखना होता, इतना सारा बॉयलर प्लेट कोड हमें ऐड करना होता। सिंपली हम एनोटेशन लगाऊंगा डिलीट, ये मेरा डिलीट फंक्शनलिटी ऐड कर देगा डेटाबेस में। और सिंपली मैं एक वो लगाऊंगा, एक इसमें एक सिंपली एनोटेशन लगाऊंगा, क्वेरी लिख रहा हूँ ना, एक ये एसक्यूएल की क्वेरी है, आई गेस
बहुत ईजी क्वेरी होती है, जैसे हमें सारा डेटा सेलेक्ट करना है उसमें से हमारे डेटाबेस में, तो हमें कैसे लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटाबेस का नेम, टेबल का नेम क्या रखा था हमने, नोट टेबल करके, या और इसको ऐसा करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं आईडी के, ऑर्डर बाय आईडी इन द असेंडिंग ऑर्डर। गाइस आप लोगों को इतना वो करने की जरूरत नहीं है, बेसिकली सेम चीज आप अपने अदर ऐप में भी यूज करोगे। ये पैटर्न फॉलो करना होता है आपको एंड्रॉइड आर्किटेक्चर कंपोनेंट को के लिए। बस इसके अलावा ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको कर दिया। ओके, वन मोर थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को एक चीज बताओ, आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हो सब? Yes, sir. व्हाट्सएप में आपको अगर कोई फाइल अपलोड करनी है, लाइक सपोज 4 MB की फाइल है, तो 4 MB की फाइल को आपको अपलोड करनी है, तो आप ये चाहते हो कि जब तक मेरी फाइल अपलोड ना हो तब तक मेरा व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाए और मैं कहीं दूसरी जगह व्हाट्सएप नहीं चला सकूं, किसी को टेक्स्ट ना कर सकूं, ये तो नहीं चाहते ना आप? तो आप क्या करते No, हो, sir. अगर हमने हमारे उस वाले फाइल अपलोड वाली चीज को हमने अगर मेन थ्रेड में अगर हमने एग्जीक्यूट करवा रखा है, तो बहुत ज्यादा बेकार काम हो जाएगा कि हम जब तक हमारी फाइल अपलोड नहीं होंगे हम लोग वहाँ उसी वाली एक्टिविटी पे रहेंगे, लॉक हो जाएंगे हमारा मेन थ्रेड। तो बेसिकली हम ये काम करते हैं कि जो जितने भी हैवी ऑपरेशन होते हैं ना उसे हम बैकग्राउंड थ्रेड में चलाते हैं, मतलब जितने भी हैवी ऑपरेशन होता है सब बैकग्राउंड थ्रेड में रन करते हैं, जिससे कि हमारी मेन एक्टिविटी मेन थ्रेड हमारा कभी भी ब्लॉक ना हो, वो हमेशा फ्री रहे। तो इसके लिए हम ऐसा एक्चुअली जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होते हैं, इंसर्ट और डिलीट बेसिकली आईओ ऑपरेशन होते हैं, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ये बहुत हैवी ऑपरेशन होते हैं। तो बेसिकली इसके लिए हमें इसे इसे बैकग्राउंड थ्रेड में चलाना होता है। बैकग्राउंड थ्रेड के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉटलिन में, जावा में तो आप इसिंग स्टार्क्स या बहुत सारे की चीज होती है, कॉटलिन में बहुत अच्छी चीज प्रोवाइड कर रखी है कि हम कोरूटीन्स के थ्रू इसके कर सकते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपली सस्पेंड लगा देना है यहाँ पे, ये हमारे फंक्शन को सस्पेंड कर देगा हमारी मेन थ्रेड से, हम इसे बैकग्राउंड थ्रेड में ले जा रहे हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे, दैट्स ये चलो हमारा डाउ क्लास हो गई। और उसके बाद हमारी नेक्स्ट थिंग है, और नेक्स्ट थिंग इज डेटाबेस क्लास। बेसिकली डेटाबेस क्लास, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखने के लिए आप लोगों को एक चीज ये है कि एंड्रॉइड की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन बहुत काफी अच्छी दे रखी है, आप लोगों को पैटर्न वहां से ही फॉलो करना है। लाइक आप लोगों को चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि ऐप में चल क्या रहा है। और इन द सेंस मैं खुद एंड्रॉइड ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का यूज करता हूँ, वहां से चीजें लाता हूँ। तो सिंपली मैंने नोट डेटाबेस क्लास है, ये बॉयलर प्लेट कोड है, ये आपको कहीं भी एंड्रॉइड की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, हम लिंक भी दे देंगे। बॉयलर प्लेट कोड होता है ये डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, आप कोई सा भी ऐप होगा आप सेम बॉयलर प्लेट कोड यूज करोगे और इसको अपने अकॉर्डिंगली चेंज करोगे। हमने क्या कर रखा है यहाँ पे, हमने क्या कर रखा है, हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर रखा है यहाँ पे, एंटिटीज मतलब टेबल नेम हमने क्या दे रखा है, एरे ऑफ नोट क्लास, जो हमने ये क्लास बनाई थी। आप लाइक आप अपने ऐप में कोई सी भी नोट के अलावा लाइक आपने क्लास बनाई, लेट्स सपोज रूम क्लास बना ली, कुछ भी क्लास बना ली, तो उसका नेम आपको एंटिटी में देना है। इसके अलावा आपको डेटाबेस के अंदर और भी चीज ऐड करनी है तो कॉमा सेपरेट करके आप यहाँ बाकी क्लास के नाम भी लिख सकते हैं। लाइक मेरे पास लाइक कोई दूसरी क्लास होती है रूम डॉट क्लास, अभी तो एरर दे रहा है मेरे पास क्लास कोई है नहीं, तो आप ऐसा करके सेपरेट करके वो कर सकते हो। बेसिकली बॉयलर प्लेट कोड है, ये आपको कहीं भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से आपको उठाना होता है, सेम कोड हर ऐप में यूज होता है। तो बेसिकली हम जो हमारा मेन पर्पज है ऐप का वो हम स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली हम क्रिएट करते हैं या और और रेपोजिटरी क्लास पहले मैं क्रिएट करता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ ये है क्या। नॉट रेपोजिटरी, ओके, मतलब हमने डेटाबेस ऑब्जेक्ट बना लिया, क्रिएट कर लिया कि हमें डेटाबेस को कैसे वहां से एक्सेस करना है। अब पैटर्न हमने मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 4 लेयर होती है एंड्रॉइड आर्किटेक्चर कंपोनेंट में, रूम डेटाबेस, उसके बाद होता है अपना उसके बाद रूम के बाद होता है अपना डेटाबेस ऑब्जेक्ट करके वो बनवाया था, उसके बाद होती है रेपोजिटरी। रेपोजिटरी बेसिकली लाइक जो हमारा डेटा होता है ना, सिंपली वो कई जगह से आ सकता है, लाइक ऑनलाइन डेटा भी आ रहा है हमारे ऐप में, ऑफलाइन डेटा भी आ रहा है। आप लोग चाहते हो कि मतलब कि हमारे जो यूआई है जो अलग अलग जगह से डेटा को मतलब एक्सेस करे, इससे बेटर तो यही होगा ना कि हम एक जगह से ही डेटा को ले, मतलब कि एक जगह डेटा को स्टोर कर दें और वहां से इसको एक्सेस कर लेते हैं डेटा को। सिंपली मतलब कि हम रेपोजिटरी में ही हमारा डेटा सेव कर देंगे, सारी फंक्शनलिटी बनाएंगे लाइक जो हम उसमें बनाते थे, जैसे हमने डाउ क्लास में बनाई है ना, सिंपली हमें ये करने की जरूरत है यहाँ पे। तो सिंपली हम इंसर्ट डिलीट फंक्शन जो हमने डाउ में बनाए थे ना, सेम यहाँ पे बनाएंगे। कहीं से भी डेटा आ रहा है हमारे ऐप में, लाइक कि हमारा डेटा ऑफलाइन डेटा आ रहा है, ऑनलाइन डेटा आ रहा है, कहीं से भी डेटा आ रहा है, वो सिंपली हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं।
रेपोजिटरी के अंदर कर देता है। जो हमारा व्यू मॉडल है, जो हमारी लास्ट लेयर होती है, वो सिंपली उसको मतलब नहीं कि आपने डेटाबेस ऑब्जेक्ट बनाया है या नहीं बनाया, वो सिंपली हमारे रेपोजिटरी क्लास से बात करती है। उसको वो सिंपली हमारे रेपोजिटरी क्लास से बात करती है। जस्ट अ सेकंड, आई हैव टू क्रिएट रेपोजिटरी बना लेता हूँ मैं सबसे पहले। तो इसमें क्या करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था ना कि हम डेटा को एक्सेस कहाँ से करेंगे, डेटाबेस ऑब्जेक्ट के थ्रू, मतलब जो हमने डाउ बनाया ना, ये डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। वेल हम इसमें एक वेरिएबल दे देते हैं वेल। गाइस ये थोड़ी सी एडवांस चीज है, मतलब आप लोगों को इतना ऐसे डरना नहीं, क्योंकि ये ना चीजें फिक्स होती है, आपको हर ऐप में यही चीजें यूज करनी होगी बार बार। तो नॉट डाउ करके मैंने जो बनाया था ना, ये या मैंने ये बना दिया। इसको मैं प्राइवेट भी कर देता हूँ फॉर नाउ, क्योंकि हम इसको कहीं बाहर यूज नहीं करने वाले। और सिंपली हमें क्या करना है, इंसर्ट और डिलीट करके फंक्शन बना लेते हैं। फन इंसर्ट, मैं नोट डाल देता हूँ इसके अंदर। या कोई मेरे को बता सकता है एरर क्यों आ रही है? और हमने सेम चीज यहाँ पे भी लिखी थी, मैं इसको हटा देता हूँ, लेकिन यहाँ पे एरर नहीं आ रही है। कोई बता सकता है, मतलब सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे तो एरर नहीं आ रही, और सेम चीज मैंने कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तभी भी यहाँ पे एरर आ रही है। लाइक मैं कॉपी भी कर देता हूँ, अगर कोई मिस स्पेल हो गया हो मेरे से, फिर भी एरर यहाँ पे आ रही है। एनी गेसेस? तो बेसिकली actually in the node DAO classes we have made the not a class, it's a interface। बेसिकली ये इंटरफेस है। तो इंटरफेस है ना, इस कारण बेसिकली यहाँ पे हमें फंक्शन क्रिएट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम इनिशिएट नहीं करने वाले इन चीजों को। बट क्लास के अंदर हमें चीजों को इनिशिएट करना होता है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमने फन इंसर्ट करा दिया, तो हमें इनिशिएट करना होगा फंक्शन को इनिशियलाइज करना होगा। नॉट डाउ डॉट सिंपली इंसर्ट कर रहा हूँ मैं नोट इसके अंदर। ओके, एरर क्या पे आ रही है यहाँ पे देखते हैं। या मेक इंसर्ट सस्पेंड। सस्पेंड क्यों? क्योंकि हम डेटाबेस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने इसको बैकग्राउंड थ्रेड में काम करा रखा है, सस्पेंड लगा रखा है ना, तो यहाँ पे भी हमें इसको बैकग्राउंड थ्रेड में काम कराना होगा। सेम एक और फंक्शन बना लेते हैं डिलीट के लिए, सस्पेंड फन डिलीट नॉट 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 डाउ डॉट डिलीट। ठीक है, इतना काम हो गया हमारा नॉट। इसके अलावा जितना काम हो गया, इसके अलावा हमें एक काम और करना है अभी। हमें बेसिकली ऑल नोट्स करके एक वेरिएबल बना लेते हैं, कि जो कि हमारा कि गेट ऑल नोट्स फंक्शन बनाया था ना डाउ के अंदर, तो उसको भी तो यूज करना है। तो एक सिंपली कुछ नहीं करते हैं, एक वेल ऑल नोट्स करके मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, वेल ऑल नोट्स वेल ऑल नोट्स सिंपली वेल ऑल नोट्स। इसको मैं जैसे मैंने यहाँ पे करा था, एक मिनट मैं देख लेता हूँ मैंने क्या करा था। हाँ, या वेल ऑल नोट्स मैं कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्ट इसको यहाँ से। वेल ऑल नोट्स लाइव डेटा लिस्ट ऑफ नोट, इसको मेरे को करना है इक्वल्स टू नॉट डाउ जो मैंने बनाया है। आई गेस क्या एरर दे रहा है, एक मिनट। वेल ऑल नोट लिस्ट ऑफ नोट करके नॉट डाउ डॉट, वही तो करना है ना हमें। जस्ट सेकेंड, फंक्शन नहीं लगाना है यहाँ पे, या नॉट डाउ डॉट गेट ऑल नोट। देखो खुद ही अपने आप सजेशन देने लग जाता है एंड्रॉइड स्टूडियो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ एंड्रॉइड स्टूडियो। सिंपली गेट ऑल नोट्स। ओके, हमने इतना कर दिया है, रेपोजिटरी बन चुकी है। अब हम बेसिकली हमारा नेक्स्ट टास्क क्या रहता है कि हमने रेपोजिटरी बना ली, अब हमें हमारे ऐप को यूआई से भी तो इंटरेक्ट कराना है हमारे डेटाबेस को। तो वो काम करता है हमारा व्यू मॉडल, दैट इज द थर्ड लेयर ऑफ द एंड्रॉइड आर्किटेक्चर कंपोनेंट। मतलब सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है, कोई सा भी ऐप बनाओगे ना, कि पहले हमें रूम बनाना है, रूम के बाद हमें उसका डेटाबेस ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद हमें डेटाबेस क्रिएट करना है, उसके बाद हमें रेपोजिटरी बनानी है, और उसके बाद हमें व्यू मॉडल बनाना। व्यू मॉडल ही बेसिकली, पहली बात, व्यू मॉडल रेपोजिटरी से डेटा लेता है और यूआई को डेटा देता है। सिंपली आप इजी लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हो। सो द पर्पस ऑफ द व्यू मॉडल इज टू एक्वायर एंड कीप द इंफॉर्मेशन that is necessary for our activity or a fragment basically। जैसे आप लोग कैसा एग्जांपल ले सकते हैं, या आप लोगों ने जैसे कोई आप
जनरली हम लोग पोर्ट्रेट यूज करते हैं फोन के, मतलब वर्टिकली यूज करते हैं। लाइक हम उसे जब भी लैंडस्केप में ले जाते हैं ना फोन को, रोटेट करते हैं फोन को, तो कौन कौन से एक्टिविटी लाइफ साइकिल से उसे पास करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ऐप डिस्ट्रॉय होगा, उसके बाद रिक्रिएट होगा वहां से, तो इसमें तो हमारा डेटा भी लॉस्ट हो जाएगा। तो अब इसे हम मेंटेन कैसे करेंगे डेटाबेस को? हमें जैसे हम रोटेट कर ले फोन को, हम ये थोड़ी नहीं चाहते कि हमने फोन को रोटेट करा और फोन को जब दोबारा उसी स्टेट में लेके आए हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में, तो बेसिकली हमारा डेटा ही गायब है यहाँ से। तो इसको कैसे करेंगे काम? तो बेसिकली यही काम व्यू मॉडल यही करता है कि व्यू मॉडल हमारे ऐप को हमेशा लाइव, जब भी हमारी एक्टिविटी लाइव होती है, डेटाबेस को सेव कर लेता है, और जब भी एक्टिविटी लाइव होती है डेटाबेस को वहां पे प्रोवाइड कर देता है उसको। सिंपली आप ऐसा समझ सकते हो। तो चलो व्यू मॉडल ही बना लेते हैं अभी। व्यू मॉडल बना लेते हैं। मैं एक क्लास बना रहा हूँ, Kotlin class, not always give the name with the capital letter, starting letter is capital, not view model। ठीक है, ये हमने व्यू मॉडल बना लिया है। अब बेसिकली इसमें कुछ फंक्शनलिटी, कुछ नोटेशंस होंगे। आप लोगों को डरना नहीं है कि सर ये कैसे लिखा है, क्या लिखा है। आप कोई भी ऐप बनाओगे सेम चीज आप यूज करोगे, आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से फॉलो करना चाहिए चीजें। मैं भी वहां से करता हूँ। सिंपली मैं एक एप्लीकेशन करके एक वेरिएबल बना रहा हूँ, एप्लीकेशन, और इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। इसको मैं एक्सटेंड भी कर देता हूँ मैं सिंपली एंड इसको व्यू मॉडल को, जो एंड्रॉयड ने प्रोवाइड कर रखा है हम लोगों को, एंड्रॉयड व्यू मॉडल करके एक, उससे मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, और इसमें मैं पास कर रहा हूँ एप्लीकेशन। क्या एरर दे रहा है ये, देखते हैं। एरर भी शो नहीं कर रहा। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी सेकेंड, क्या दिक्कत आ रही है? सॉरी, इट्स नॉट ए वेरिएबल, it's just application context, it is a context। ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक इनिट ब्लॉक बना लेते हैं। बेसिकली इनिट ब्लॉक मतलब ये होता है, जब भी हमारी क्लास बनती है ना, जो इनिट ब्लॉक के अंदर चीजें जो हम कोड ऐड करेंगे ना, सबसे पहले वही एग्जीक्यूट होता है इनिट ब्लॉक के अंदर। तो मैंने आपको बताया था कि व्यू मॉडल ओनली किससे बात करेगा, हमारे रेपोजिटरी से। रेपोजिटरी का एक कॉन्टेक्स्ट बना लेते हैं हम। रेपोजिटरी करके उसका एक वेरिएबल बना लेते हैं। रेपोजिटरी 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 का मैंने एक वेरिएबल बना लिया। सॉरी, क्लास नेम इज नॉट रेपोजिटरी। ठीक है, इसको प्राइवेट भी कर देता हूँ। अभी आपको एरर देखने की जरूरत नहीं है, कि एरर सही हो जाएंगे अभी थोड़ी देर में। अभी हम इसको इनिशियलाइज करेंगे। एक्चुअली हमने इनिशियलाइज नहीं कर रखा ना, इस कारण यहाँ पे एरर दे रहा है। हमें एक और वेरिएबल बना लेते हैं ऑल नोड्स करके, जिससे कि हमारा सारा डेटा इसमें आ जाए। तो सिंपली क्या करते हैं, वेल ऑल नोट, इसमें दे देते हैं हम वेल ऑल नोट लाइव डेटा, नॉट लिस्ट ऑफ नोट। ओके, कोई दिक्कत नहीं, अभी एरर आ रही है, हम लोग अभी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो एरर चल जाएगी। अब इनिट ब्लॉक के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले कि डेटाबेस को लाना है। डेटाबेस को इसमें कैसे लाएंगे मैंने पहले बता रखा है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट के थ्रू, डाउ क्लास के थ्रू। तो सिंपली मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, वेल डाउ इज इक्वल्स टू वेल डाउ इज इक्वल्स टू नॉट वेल डाउ इज इक्वल्स टू क्या करते हैं, नॉट डेटाबेस करके हमने डेटाबेस बना रखा है ना, वहां से लाना है। डेटाबेस बनाया, डॉट, देखो ये मुझे खुद सजेशन देते जा रहा है बार बार। नॉट डाउ डेटाबेस मैंने एंटर करा, जैसे मुझे गेट डेटाबेस, इसमें मैं डाल देता हूँ मेरा कॉन्टेक्स्ट डालने को बोल रहे थे। कॉन्टेक्स्ट क्या है मेरा यहाँ पे, एप्लीकेशन डॉट, देखो खुद ही सजेशन दे रहा है मुझे, गेट नॉट डाउ। तो ये क्या कर रहा है, नॉट डाउ क्लास से हमारे डेटा लाके डाउ वेरिएबल को दे रहा है। सिंपली डाउ वेरिएबल को इसने डेटा दे दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, रेपोजिटरी में ये रेपोजिटरी क्लास है, इसमें बेसिकली इसको भी इनिशियलाइज कर देते हैं, क्योंकि वहां पे एरर भी आ रही है ना, इसको इनिशियलाइज कर देते हैं यहाँ पे, नॉट रेपोजिटरी, और इसमें मैं डाल देता हूँ क्या, नॉट डाउ। सिंपल, जस्ट ए सेकेंड,
क्या error दे रहा है ये पे, इसमें मैं डाल देता हूँ सिंपली, हमें कुछ नहीं डालना, डाउ ऑब्जेक्ट डालना। तो डाउ ऑब्जेक्ट हमने क्या बना रखा है यहाँ पे, डाउ बना रखा है ना वेरिएबल, तो डाउ डाल दिया। ओके ओके, अब बेसिकली हमें क्या करना है, ऑन नोट्स को भी इनिशियलाइज कर देते हैं। ऑल नोट्स को भी इनिशियलाइज कर देते हैं, ऑल नोट डॉट ऑल नोट्स इसको इसके अंदर डाल देते हैं, ऑल नोट्स के इसको भी इनिशियलाइज करना है ना। इसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे, मतलब हम लोगों ने अभी तक क्या करा है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा लाए हैं डाउ, उसको हम रेपोजिटरी में डाल रहे हैं, क्योंकि हमारा व्यू मॉडल ओनली बात करता है रेपोजिटरी से। तो सिंपली हम क्या करते हैं इसमें, कुछ नहीं, रेपोजिटरी के थ्रू ये ले आते हैं, रेपोजिटरी डॉट ऑल नोट्स। ओके, अब हमें क्या करना है, ये हमारा इनिट ब्लॉक हो गया। अब हम इसमें ऐड करना है डिलीट फंक्शनलिटी एंड इंसर्ट फंक्शनलिटी। तो एक वेरिएबल बना ले, एक फंक्शन बना लेते हैं सिंपल सा, इंसर्ट नोड करके एक फंक्शन बना लेते हैं, और एक डिलीट नोड करके बना लेंगे अभी, है ना। तो सिंपली फन इंसर्ट नोड, मैंने एक फंक्शन बना लिया, इसमें मैं नॉट ऑब्जेक्ट डाल देता हूँ, वेल नॉट, जस्ट अ सेकंड, वेट, व्हाट इट विल से। ओके, फंक्शन बॉडी ऐड करनी है, ये तो हो जाएगा। तो इंसर्ट नोड करके एक फंक्शन बना लेते हैं, और इसमें या, और सिंपली इसमें क्या करना है हमें, मेरे को एक चीज बता सकता है, लाइक हमने लोगों ने, आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने सस्पेंड तो लिखा लेकिन कोरूटीन्स का तो आपने यूज करा ही नहीं, इसको यूज कैसे करोगे। तो बेसिकली हम इसे कोरूटीन्स के थ्रू यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे, हमारे कोरूटीन्स को बैकग्राउंड थ्रेड में कैसे ले जाएंगे। सिंपली हम, सिंपली कुछ नहीं करना, एक पैटर्न फॉलो करना है आपको, कुछ नहीं है, ग्लोबल स्कोप डॉट लॉन्च, ये हमारे इसको बैकग्राउंड थ्रेड में ले जाता है, और इसे हम बेसिकली डिस्पैचर दे देते हैं इनपुट आउटपुट थ्रेड के लिए, डिस्पैचर डॉट आईओ उसको ब्लॉक कर देगा। और सिंपली हम इसमें क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं बेसिकली ऑल नोट्स डॉट, ऑल नोट्स में इंसर्ट कर देते हैं, रेपोजिटरी में हमारा जो नोट आई है ना, इसको इंसर्ट कर देते हैं, रेपोजिटरी डॉट इंसर्ट नोट्स, और सही है आई गेस, या। और सिंपली मैं इसे ही कॉपी करूंगा इस फंक्शन को, और डिलीट का भी मैं ऐसे ही बनाऊंगा, और मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, और इसका नेम चेंज कर देता हूँ डिलीट नॉट, डिलीट नॉट, और यहाँ पे इंसर्ट की जगह डिलीट फंक्शन कॉल कर दूंगा। तो अभी हमने क्या करा, मतलब अभी तक हमने क्या करा, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोगों को एक पैटर्न फॉलो करना होता है एंड्रॉइड आर्किटेक्चर कंपोनेंट को ऐड करने के लिए, रूम क्रिएट करना होता है, उसके बाद हमें उसके बाद हमें उसका डेटाबेस ऑब्जेक्ट बनाना होता है, उसके बाद हमें एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट बनाना होता है एंड उसके बाद हमें डेटाबेस ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमें बेसिकली आपको ये कुछ नहीं देखना है, पैटर्न आपको हर ऐप में फॉलो करना है। बेसिकली थोड़ा एडवांस टॉपिक है, आप लोग अभी आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये क्या चल रहा है ऐप के अंदर, तो ये आप लोगों को ये पैटर्न फॉलो करना है, हर ऐप में पैटर्न फॉलो करना होता है, थोड़ा एडवांस टॉपिक है। इसके थ्रू बेसिकली हम ये जो पैटर्न फॉलो करके जो हमारा ऐप बनेगा ना, काफी रोबस्ट बनेगा, काफी टेस्टेबल बनेगा, मतलब एक इंडस्ट्री लेवल ऐप बन जाएगा। लाइक आप सिंपल एसक्यूएल के थ्रू बना सकते हो डेटाबेस को क्रिएट, नो डाउट आप कर सकते हो, बट लेकिन दिस एंड्रॉइड ने खुद ने एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में डाल रखा है, तो लेकिन आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो कि आप 4 लेयर बनाते हो, रूम बनाते हो, रूम के बाद आपने डेटाबेस ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद आपने उसके बाद आपने आपने डेटाबेस बनाया, उसके बाद रेपोजिटरी बनाया, उसके बाद व्यू मॉडल बनाया। तो बेसिकली ये हमारे ऐप को थोड़ा इंडस्ट्री लेवल ऐप बना देता है। लाइक कि हमारे बहुत ज्यादा यूजर्स है, लाइक हम एक एसक्यूएल के थ्रू एक हम ऐप बना रहे हैं, हम व्हाट्सएप एसक्यूएल के थ्रू डेटाबेस के थ्रू यूज कर रहे हैं। तो सिंपली मतलब मिलियंस और आई गेस बिलियंस ऑफ यूजर्स है व्हाट्सएप के, तो वो बेसिकली वो एक इंडस्ट्री लेवल ऐप नहीं बन पाएगा उस पैटर्न के थ्रू। तो हमें उसे इंडस्ट्री लेवल ऐप बनाने के लिए, उसे अच्छी तरह मेंटेन करने के लिए ऐप को, हमें बेसिकली पैटर्न होता है, सेट ऑफ लाइब्रेरीज फॉलो एंड्रॉइड ने हमें प्रोवाइड कर रखी है। एक तो आप लोग सबसे पहले एंड्रॉइड की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना सीखिए, बहुत बहुत अच्छी इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन लिख रखी है। हम लोग भी बेसिकली जब भी कोई डाउट आता है सिंपली गूगल सर्च करते हैं, फर्स्ट लिंक एंड्रॉइड का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का आता है।
हम लोग बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के कोई चीज रटते नहीं है, कोई चीज रटनी नहीं है आपको, सब चीज आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। हाँ, ओके। तो सिंपली मतलब हमने ये एंड्रॉइड आर्किटेक्चर कंपोनेंट बना लिया है। अब हमें क्या करना है, यूआई से कनेक्ट करना है और बेसिकली हमारा यूआई क्रिएट करना है। ये काम हमने आई गेस पिछले सेशन में कर लिया था कि हमने एक तो वो बनाया था ना, टिप कैलकुलेटर है, तो कैसे एडिट टेक्स्ट लगाते हैं, कैसे मतलब यूआई बनाते हैं। तो आई गेस ये सब तो आप लोगों को आता होगा, हमने पिछले सेशन में भी बताया था। तो मैं एक बार तो सिंपली हम ये काम मेरे को लग रहा है आप लोग कर लोगे, यूआई वाला काम। अब हमारे ऐप में कुछ नहीं बचा है, हमें यूआई ऐड करनी है ऐप के अंदर और डेटाबेस को लगाना है। नहीं तो फिर हम यूआई वाला पार्ट भी करते हैं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में फॉरवर्ड करते हैं, वर्क मैनेजर। वो भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक बार चैट सेक्शन में लिख दो कि आप यूआई वाला पार्ट कर लोगे, कि जो हमने अभी बताया था ना आप लोगों को। हाँ, जीयूआई वाला पार्ट कर लेंगे या अभी ऐसा ऐसा करना भी ना कि आप हम्म, जब ये सेशन के बाद वो जीयूआई वाला पार्ट थोड़ा रिकॉर्ड करके डाल देना, तो ये लोग वो या भी कंप्लीट कर सकेंगे पूरे ऐप को। या ओके, ठीक है। ठीक है। ओके, तो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वर्क मैनेजर। लाइक आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा ना, ऐप में नोटिफिकेशंस आती है, कुछ चीज हम शेड्यूल कर देते हैं कि इस टाइम बाद वो चीज चले। लाइक क्लॉक कितने लोग यूज करते हैं क्लॉक? नोटिफिकेशंस तो आती है ना हमारे ऐप में स्टार्टिंग में, वो कैसे आती है? वो बेसिकली वर्क मैनेजर के हम चीजें शेड्यूल करते हैं, उसी के थ्रू हम आज अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वर्क मैनेजर। नाउ आई विल ओवर टू श्रेयांश। Okay. Thank you, Abhi. So, hello everyone. This is Shreyansh. So, let me share my PPT. Okay. Okay. So, is it visible? दिख रही है PPT? Hello. Yes, Shreyansh, we are able to see Yes, you. it's visible, Shreyansh. Okay. Okay. Yes, sir. यस सर दिख रही है. Okay. So, hello everyone. This is Shreyansh. So, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क मैनेजर. So, basically वर्क मैनेजर क्या होता है? So, वर्क मैनेजर is the most efficient and effective way to manage work in background. सो लाइक तुमने देखा होगा लाइक जैसे कुछ जो ऐप्स होते हैं जो बैकग्राउंड में काम कर रहे होते हैं, जैसे सबसे सिंपलेस्ट ऐप है हमारे पास, जैसे हमारी जो अलार्म क्लॉक होती है। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, उसमें हम अलार्म लगा देते हैं, शेड्यूल कर देते हैं टास्क को। तो जब जिस टाइम का हमने अलार्म लगाया होता है तो वो हमें वहाँ पे उस टाइम अलार्म बज जाता है, ठीक है। सो वी यूज वर्क मैनेजर टू रन डेफरेबल, दैट मीन्स कैपेबल ऑफ बीइंग पोस्टपोन्ड बैकग्राउंड वर्क्स. Also, work manager provides a guarantee that the system will run the postponed task even if the user navigate away from the app. मतलब अगर यूजर वो ऐप बंद भी कर देता है फिर भी वो टास्क कंप्लीट हो जाता है जब हमने उसको बेसिकली जब शेड्यूल किया होता है। सो बेसिकली फीचर्स क्या होते हैं वर्क मैनेजर के? सो बेसिकली इट सपोर्ट्स चेंज टास्क, मतलब जैसे हमको चाहिए कि हमने 3 टास्क है हमारे पास, हमको चाहिए कि एक के बाद एक टास्क अकम्प्लिश हो जाए, तो उसके लिए हम वर्क मैनेजर का यूज करते हैं। ऑल्सो लाइक इट सपोर्ट्स पीरियोडिक टास्क, लाइक हमको चाहिए कि हमारा जो टास्क है बेसिकली पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद चले। लाइक हमको अभी हम समझेंगे कि पीरियोडिक टास्क क्या होता है। सो बेसिकली 2 टाइप के टास्क होते हैं हमारे पास, जो वर्क मैनेजर 2 टाइप के टास्क करता है। एक होता है वन टाइम वर्क रिक्वेस्ट और दूसरा होता है पीरियोडिक वर्क रिक्वेस्ट, ठीक है। तो अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लाइक तुम एक इंस्टाग्राम टाइप ऐप बना रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली मैंने बोला कि 2 टाइप की वर्क रिक्वेस्ट होती है, एक वन टाइम रिक्वेस्ट होती है और दूसरी होती है पीरियोडिक वर्क रिक्वेस्ट। सो वन टाइम में क्या होता है, लाइक जैसे तुम अपनी कोई स्टोरी पोस्ट कर रहे हो या फिर तुम अपनी कोई पोस्ट, मतलब जो तुम पोस्ट डालते हो वो पोस्ट करना चाहते हो। सो बेसिकली वन टाइम रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है कि तुम जैसे ही उसको पोस्ट करोगे, मतलब अपलोड करोगे, तो वो अपने ऊपर एक टास्क ले लेगा। वो टास्क ये होगा कि जब भी हमारा नेटवर्क स्टेबल हो या फिर हमारी जो स्टोरेज हो वो सही हो, मतलब हमारे फ़ोन की स्टोरेज हो सही हो, मतलब स्टोरेज फुल ना हो या फिर हमारा फ़ोन चार्जिंग पे हो। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम उसमें कंस्ट्रेंट करते हैं। लाइक अगर हम पोस्ट कर रहे हैं तो हमको चाहिए कि हमारा नेटवर्क स्टेबल हो, तो हम उसमें कंस्ट्रेंट लगा देंगे कि जब भी हमारा नेटवर्क स्टेबल होगा तब वो टास्क अकम्प्लिश होगा। सो वन टाइम रिक्वेस्ट बेसिकली क्या होगा कि हम उसमें कंस्ट्रेंट लगा के उसको हम शेड्यूल कर रहे हैं। बेसिकली वर्क का काम क्या होता है, हम चीज़ों को शेड्यूल कर रहे हैं, तो हम लौट फिर के एक ही जगह आएंगे कि हमें शेड्यूल करना है चीज़ों को। सो लाइक जैसे हम पोस्ट करेंगे तो हम वन टाइम में क्या बोलेंगे कि हमें बेसिकली हमारी जब भी हमारा फ़ोन का नेटवर्क स्टेबल हो तब वो पोस्ट हो जाए, ठीक है। तो ये वन टाइम हो गया। अब पीरियोडिक वर्क रिक्वेस्ट होती है। पीरियोडिक वर्क रिक्वेस्ट में बेसिकली क्या होगा, लाइक अब जैसे तुमने पोस्ट कर दिया, ठीक है, अब तुम्हारे अलावा और भी लोग पोस्ट कर रहे होंगे, ठीक है।
सो लाइक तुम ऐसा चाहते हो कि तुम्हारा जो ऐप है वो पर्टिकुलर टाइम के बाद जो पोस्ट है उनको मतलब अपडेट करता रहे। लाइक जैसे तुम्हारे पास अभी 2 पोस्ट आई हैं 2 बंदों की, ठीक है, तीसरे बंदे ने पोस्ट की, तो तुम चाहते हो कि 15 मिनट बाद, हर 15 मिनट के इंटरवल में चीजें मतलब अपडेट होती रहे, मतलब 15 मिनट बाद चेक करें कि कोई नई पोस्ट तो नहीं आई। तो अगर वो नई पोस्ट कोई आ रही होगी तो बेसिकली वो अपने आप में दिखा देगा कि एक नई पोस्ट आई है। तो बेसिकली ये होता है पीरियोडिक वर्क रिक्वेस्ट, कि हम हर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद चीजों को शेड्यूल कर रहे हैं, ठीक है। और फिर अब आते हैं इसके बेसिकली कोडिंग कैसे करते हैं, ये कैसे हम वर्क मैनेजर को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो इसको स्टॉप करता हूँ मैं, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो का मैं शेयर करता हूँ। ओके ओके, सो मेरी स्क्रीन विजिबल है, एंड्रॉइड स्टूडियो विजिबल है? या श्रेयांश? Yes, ओके, sir. डन 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 डन। सो बेसिकली सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले जो हमारा जो वर्क मैनेजर है उसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी। अब लाइब्रेरी इंपोर्ट क्यों करते हैं? सो लाइक तुमने देखा होगा जब तुम जैसे सबसे सिंपल सी प्रोग्राम लिखते हो, सो बेसिकली तुम क्या करते हो, ऊपर लिखते हो ना हैश इंक्लूड stdio डॉट h, और ये सारी चीज लिखते हो। वो क्यों लिखते हो? जिससे हमारे जैसे जो भी इनपुट आउटपुट जो ऑपरेशन है वो सारे इंपोर्ट हो जाए। तो बेसिकली हमें जो लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं हम, ये किस लिए करते हैं? जिससे हमारे जो भी वर्क मैनेजर की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो सारी इंपोर्ट हो जाए। सो हम डिपेंडेंसी में हम ये वाली लाइब्रेरी डालते हैं वर्क मैनेजर की। इसको मैं मतलब ये बेसिकली आपको मिल जाएगी गूगल पे, या फिर हम लोग आपको दे देंगे। सो जब भी आप इसको अपने इसको अपने बिल्ड डॉट ग्रेडल में मिलेगा। बिल्ड डॉट ग्रेडल कहाँ मिलेगी? यहाँ पे मिलेगी। ग्रेडल स्क्रिप्ट होती है, इसके अंदर जो सेकंड फाइल है जो ऐप लेवल की होती है। सो इसके अंदर आपको ये डिपेंडेंसी डालनी होगी, और ये वर्क मैनेजर की जितनी भी लाइब्रेरीज है वो सारी इंपोर्ट कर देगा हमारे प्रोजेक्ट में, ठीक है। फिर जब आप इसको यहाँ पे बेसिकली इसको इनपुट करा देंगे, फिर इसका सिंक का ऑप्शन आएगा, सो आप सिंक कर लीजिएगा। सो ये बेसिकली क्या हुआ, हमारा वर्क मैनेजर हमारे प्रोजेक्ट में इंक्लूड हो गया है। अब हम उसकी लाइब्रेरीज यूज कर सकते हैं। सो अब हम आते हैं हमारे मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल में, कि हमारा यूआई क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। सो देखो, हमारा हमने क्या बोला था कि वर्क मैनेजर जो होता है वो एक टास्क को वो शेड्यूल करता है। तो वो टास्क शेड्यूल करने के लिए हमें एक स्टार्ट बटन चाहिए जिससे वो टास्क शेड्यूल कर पाए हम। सो हमारे पास एक सबसे सिंपल एक बटन है और एक टेक्स्ट व्यू है। ये टेक्स्ट व्यू क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमारे अंदर जो भी इसमें जो टेक्स्ट है वो अभी हमने नल कर रखा है, मतलब हमारे अंदर कोई इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे मौजूद है एक टेक्स्ट व्यू। सो सर इस टेक्स्ट व्यू का यूज क्या है? तो देखो, बटन का यूज का समझ में आ गया कि हम अपना शेड्यूल स्टार्ट यहाँ से कर देंगे इस बटन से। टेक्स्ट व्यू में हमें ये दिखाएगा कि हमारा जो हम शेड्यूल करा है वो कौन सी स्टेट पे पहुंचा है अभी वो, मतलब कि स्टेट में आगे जाके आपको समझाऊंगा। एक ओवरव्यू ऐसा ले लो कि स्टेट मतलब हमारा टास्क कंप्लीट हो गया है, या फिर हमारा टास्क चल रहा है, या फिर हमारा टास्क एक अवेटिंग प्रोसेस में, मतलब एक वेटिंग प्रोसेस में कि हमारा टास्क आने वाला है। लाइक अवेटिंग का मतलब ऐसे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था इंस्टाग्राम का। सो लाइक अगर मान लो तुमने पोस्ट करी कोई स्टोरी, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा मान लो उस टाइम नेटवर्क स्टेबल नहीं है या फिर तुम्हारा नेट ऑफ है। सो बेसिकली क्या कर देगा वो, जो तुम्हारा तुमने बटन पे तो क्लिक कर दिया स्टार्ट पे, सो बेसिकली वो तुम्हारी चीजों को क्या कर देगा, क्यू में एक डाल देगा, एक एन क्यू कर देगा कि तुम्हारा टास्क जब अभी तो तुम्हारा नेट ऑफ है इसलिए वो चीज रन नहीं हो पा रही है, तो जब तुम्हारा नेट ऑन होगा तब वो चीजों को बेसिकली रन कर देगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं मेन एक्टिविटी पे। तो हमने समझ लिया हमारे पास दो चीजें हैं, एक स्टार्ट बटन है और एक टेक्स्ट व्यू है जो हमें दिखाएगा कि हमारा प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा है। सो मेन एक्टिविटी में आते हैं। अब मैंने क्या बोला कि हमको बटन पे क्लिक करने पे अपना शेड्यूल जो शेड्यूल हम करेंगे वो हमें रन कराना है। सो हम बोलेंगे बटन डॉट सेट ऑन। देखो अभी ये बटन डॉट सेट ऑन दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा। क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि बटन अभी इंपोर्ट नहीं है। अब देखो कुछ लोगों को इंपोर्टिंग में दिक्कत आ रही थी कि सर अल्ट एंटर काम नहीं कर रहा। देखो ऐसे होता है, अभी तुम अल्ट एंटर सिंपल प्रेस करोगे कुछ नहीं होगा। तुम्हें क्या करना है, बटन पे जाना है, बटन पे क्लिक करना है। अब ये जैसे ये ब्लू बटन दिखा रहा है ना अल्ट एंटर, अब तुम सिंपली अपने कीबोर्ड का लेफ्ट वाला जो अल्ट है उसको प्रेस करो और राइट वाला एंटर प्रेस करो, तुम्हारा इंपोर्ट हो गया, ठीक है। इंपोर्ट होके कहाँ दिखता है? यहाँ पे दिखता है। देखो जैसे अगर मैं ये जो बटन है वो इंपोर्ट होके यहाँ पे, तो जब भी अब मैं और भी कोई नई चीज इंपोर्ट करूंगा तो वो यहाँ पे दिख जाएंगे तुमको सारी इंपोर्ट्स, ठीक है। सो अब मैं देखो सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगाता हूँ। सो ये देखो तुम्हें ऑप्शन दे दिया ना सेट ऑन क्लिक लिस्टनर का, तो तुमने ये लगा दिया। तो अब हमें क्या करना है, हमको बटन पे क्लिक होने पे करना क्या था, हमें करना ये था कि हमें बेसिकली अपना टास्क शेड्यूल करना है। तो हमारे पास दो तरीके के टास्क थे, हमने बोला था एक वन टाइम रिक्वेस्ट था, दूसरा था जो हम क्या कहते हैं, एक वन टाइम रिक्वेस्ट था और दूसरा था पीरियोडिक रिक्वेस्ट, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं कि वन टाइम कैसे काम करेगा। सो हम चाहते हैं कि जब हमारा बटन पे क्लिक हो तो वन टाइम रिक्वेस्ट एक शेड्यूल जो है वो वन टाइम शेड्यूल हो जाए, ठीक है। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं वन टाइम शेड्यूलर। तो हमने एक फंक्शन बना लिया वन टाइम शेड्यूलर, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम
देख लेते हैं इसको कि इसके अंदर क्या आएगा। सो हम एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे फन 1 टाइम 3 टूलर, और इस फंक्शन के अंदर हम कुछ लिखेंगे। ठीक है, अब देखो, अब हमारा काम क्या है कि हमें टास्क बनाना है, एक वर्क मैनेजर बनाना है जो चीज़ों को शेड्यूल करे, जो कुछ काम करे। लाइक हमने तो बोला कि चीज़ों को शेड्यूल करना, तो काम कुछ भी कर सकता है। लाइक हमें चाहिए कि हमारा जैसे बटन पे क्लिक हो तो बेसिकली वो एक नोटिफिकेशन को शेड्यूल कर दे, मतलब वो बोल दे कि तुम लाइक जब भी मेरा नेट ऑन हो या मेरी फोन चार्जिंग पे हो तो मेरे को एक शेड्यूल दे, मेरे को एक नोटिफिकेशन दे दे। तो हम ये नोटिफिकेशन शेड्यूल कर सकते हैं। लाइक हम बोल सकते हैं कि जब भी हमारा बटन पे क्लिक हो सो बेसिकली एक फॉर लूप चल जाए। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे करेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले वर्क मैनेजर का वेरिएबल बना लेते हैं। तो हमने बनाया वर्क मैनेजर, इसको हमने इनिशियलाइज करा वर्क मैनेजर से। जो हमने ये देखो, ये जो वर्क मैनेजर है ना, ये वर्क मैनेजर कहाँ से आया, जो हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट करी थी वहां से आया। सो हमने बोला वर्क मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस, और यहाँ पे हमें अपना जो कॉन्टेक्स्ट है वो पास करना होता है। ठीक है, सो हमने सिंपल एक वर्क मैनेजर बना लिया। अब हमको क्या बनाना है, हमको एक रिक्वेस्ट बनानी है। सो हमने बोला वर्कर रिक्वेस्ट, वर्कर रिक्वेस्ट। सो बेसिकली ये एक रिक्वेस्ट बनाएगा, वन टाइम रिक्वेस्ट, वन टाइम वर्क रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर। लाइक मैं अभी थोड़ा कोड लिख देता हूँ, फिर तुमको समझा दूंगा कि क्या चीज़ चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे। हाँ, तो देखो, सबसे पहले हमने एक वर्क मैनेजर बनाया। वर्क मैनेजर में हमने एक वर्क मैनेजर का इंस्टेंस ले लिया कि हमें वर्क मैनेजर चाहिए और उससे हम टास्क को शेड्यूल करना चाहते हैं। अब देखो, वर्क मैनेजर में 3 चीजें होंगी। ठीक है, एक होगा वर्क मैनेजर हमें बनाना होगा, फिर वर्क रिक्वेस्ट बनानी होगी। ये रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, वर्क रिक्वेस्ट हम क्यों बना रहे हैं, ये हम इसलिए बना रहे हैं कि हम पहले इस चीज को बताएंगे कि हमको क्या काम करना है, फिर उसके बाद हम उसको काम करने पर लगाएंगे। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेंगे कि क्या काम करना है। तो क्या काम करना है, वो जो हमें काम करना है ना, वो हम सीधे यहाँ पे अपनी मेन एक्टिविटी में और इसके अंदर नहीं लिखेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल एक क्लास बना लेंगे, कॉटलिन क्लास, जिसके अंदर हम सारी चीजें डालेंगे कि हमको करना क्या है। सो हम यहाँ पे जाते हैं, ये देखो जावा के अंदर जो हमारा पैकेज है इसके अंदर आते हैं न्यू, और न्यू के अंदर हम एक कॉटलिन क्लास बना लेते हैं। सो इसका नाम हम रख लेते हैं अपलोड वर्कर। एक हमने एक क्लास बना दी। ठीक है, सो हमने एक क्लास बना दी। अब मेन एक्टिविटी पे आते हैं। अब ये क्लास को ऐसे रहने देते हैं। सो हम इसको बोल रहे हैं कि तुम एक वर्कर रिक्वेस्ट बनाओ। इस वर्कर रिक्वेस्ट का काम ये होगा कि तुम वन टाइम रिक्वेस्ट हो। तुम देखो 2 टाइप की रिक्वेस्ट थी ना, एक पीरियोडिक और एक वन टाइम। सो हमने बोला कि तुम एक वन टाइम टाइप की रिक्वेस्ट हो, और बेसिकली तुम क्या करो, जो हमने अपलोड वर्कर में जो भी हमने कोड डाल रखा है, अपलोड वर्कर में जो भी हमने कोड डाल रखा है उसको तुम अपने एक बेसिकली क्या कहते हैं लाइक, हाँ, सो और इसको फाइनली डॉट बिल्ड कर दो। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि मैंने एक वर्कर रिक्वेस्ट बना ली, अपनी एक रिक्वेस्ट बना ली, जो बेसिकली अपलोड वर्कर के अंदर जो भी चीजें होंगी उसको मैं वर्कर रिक्वेस्ट में डालूंगा, और अब मैं फाइनली इसको एनक्यू कर दूंगा। ठीक है, अब इसको एनक्यू करने के लिए मैं क्या करूंगा, बेसिकली इसको एनक्यू करने के लिए जो मेरा वर्क मैनेजर है डॉट एनक्यू, जो मैंने वर्कर रिक्वेस्ट है वो मैंने एनक्यू मार दी। ठीक है, अब देखो ये क्या कर रहा है, ये इसने बोला कि जो मेरा रिक्वेस्ट थी वो वन टाइम रिक्वेस्ट थी, अपलोड वर्कर के अंदर जो भी चीज था वो मेरे को करना है काम, और मैंने इसको एनक्यू कर दिया। ठीक है, अब मैं आता हूँ अपलोड वर्कर में, मेरे को ये देखना है कि मेरे को काम क्या करना है। तो बेसिकली अभी पहले सबसे पहले इसको एक्सटेंड करते हैं वर्कर से। अब जो वर्कर है वो क्या है, वो एक वर्कर की क्लास है, मतलब एक पेरेंट क्लास होती है जो हमने लाइब्रेरी के साथ हमने इसको इसके अंदर इंपोर्ट करा ली थी। देखो हमने जैसे ही वर्कर लिखा था उसने यहाँ पे वर्क के अंदर जो भी जो हमारा वर्क था इसके अंदर की जो क्लास है उसको उसने इंपोर्ट करा दी। ठीक है, अभी इसके अंदर 2 पैरामीटर होते हैं वो हम कर लेते हैं। तो एक पैरामीटर होता है कॉन्टेक्स्ट, दूसरा पैरामीटर होता है हमारा पेरेंट्स, जो होता है वर्कर पैरामीटर। ठीक है, और ये दोनों पैरामीटर हमें इस पेरेंट क्लास के अंदर पास करने होते हैं। सो हमने पैरामीटर पास कर दिए पेरेंट्स। ठीक है, अब देखो ये कुछ कह रहा है, ये एक एरर दे रहा है। ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि जो हमारी अपलोड वर्कर क्लास है उसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं जिसको तुम्हें इंप्लीमेंट करना है। तो देखो नीचे नीचे देख रहे हैं यहाँ पे इंप्लीमेंट मेंबर्स आ रहा है, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। सो जैसे ही तुम अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एंटर करोगे, ये तुम्हारे जो भी फंक्शन इसके अंदर होते हैं, मतलब जो तुम्हारी जो वर्कर क्लास तुमने इंपोर्ट करी थी ना, सो जो वर्कर क्लास तुमने इंपोर्ट करी थी उसके अंदर कुछ मेथड्स हैं। सो वो मेथड्स तुम्हें इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, नहीं तो ये एरर देगा, क्योंकि तुमने अगर उसके मेथड्स ही इंप्लीमेंट नहीं करे तो तुमने उसका यूज ही क्या किया। सो ये हमारा एक डू वर्क एक इसका मेथड है, उसको हमें इंप्लीमेंट करना है, तो ओके कर दिया। सो ये देखो टू डू में आया नॉट एट इम्प्लीमेंटेड, मतलब हमें ये काम करना है अब। तो मैंने क्या बोला था कि अपलोड वर्कर में क्या होगा, अपलोड वर्कर में हम वो चीज लिखेंगे जो हमें काम करना है।
सो हमने बोला था कि हमें क्या क्या काम कर सकते हैं हम, एक तो या तो हम नोटिफिकेशन भिजवा दें या फिर हम एक फॉर लूप चला दें। सो हम एक काम करते हैं, हम एक फॉर लूप चला देते हैं। सो हमने बोला फॉर आई इन 0 to लाइक 0 to 2 लाख, ठीक है। और हम फाइनली क्या करेंगे, एक लॉग में प्रिंट कर देंगे। अब लॉग क्या है अभी हम समझते हैं। सो लॉग डॉट आई माई टैग अपलोड प्लस आई। अभी देखते हैं क्या काम कर रहा है ना। सो पहले इसको इंपोर्ट मार लेते हैं। इंपोर्ट मारने का तरीका, इसके ऊपर क्लिक करो, जब ये ब्लू बॉक्स आ जाए अल्ट एंटर मार दो, ठीक है। सो देखो, अब देखो ये बेसिकली होता क्या है, लॉग क्या होता है। लाइक देखो लॉग यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है नीचे, जो तुम नीचे आओगे टू डू आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रहा है, गेट आ रहा है, टर्मिनल्स आ रहा है, बिल्ड आ रहा है, लॉककेट आ रहा है, लॉककेट आ रहा है, लॉककेट में आओ। सो देखो लॉककेट में क्या होता है, जैसे लॉक का बेसिकली बहुत सारे यूज है। एक मेन यूज ये है, मतलब एक अच्छा यूज ये है कि तुम चीज़ों को डिबग कर सकते हो। मतलब जैसे तुमने एक बहुत लंबा कोड लिखा, मान लो तुमने 100, बहुत लंबा चलो छोड़ो, बहुत लंबा ही मान लो, या फिर 100 लाइन का कोड मान लो तुमने, मान लो 100 लाइन का कोड लिखा। अब वो कोड ने दे दिया एरर, और वो ये नहीं बता रहा कि एरर है कहाँ पे। सो अब तुमको डिबग करना है कि वो एरर है कहाँ पे। तो तुम बेसिकली क्या करोगे, ये जो लॉग है, ये जो लाइन है, इसको उठाओगे और तुम क्या करोगे, सबसे पहले वो 100 लाइन के बीच में, मतलब 50 लाइन के आगे तुम ये इस लाइन को डाल दोगे। सो इस लाइन को डालने में 50, तुमने देखा कि तुम्हारे ऊपर 50 लाइन है और तुम्हारे नीचे 50 लाइन है। सो बेसिकली अगर तुमने फिर रन करा उसके बाद अगर लॉग में ये चीज प्रिंट हो रही है जो तुमने यहाँ पे लिखी है, जैसे हमने यहाँ पे अपलोड लिखा है। सो अगर ये अपलोड प्रिंट हो रही है, यानी कि तुम्हारा जो ऊपर का 50 लाइन ऑफ कोड है उसमें एरर नहीं है। मतलब समझ रहे हो कि जैसे हमने क्या किया, एक 50 लाइन ऑफ कोड लिखा, फिर लॉग लगाया, फिर नीचे 50 लाइन ऑफ कोड लिखा। सो अगर वो जो लॉग हम जो है, लॉग बेसिकली क्या होता है, कंसोल पे प्रिंट कराने की एक चीज होती है, ठीक है। तो बेसिकली तो लॉग क्या होता है कि कंसोल पे प्रिंट करने की एक बेसिकली एक तरीका होता है। तो मतलब तुम ये समझो कि लाइक अगर 50 लाइन तुमने ऊपर लिखी लॉग के और 50 लाइन नीचे लिखी, तो अगर तुम्हारा लॉग जो है वो अगर प्रिंट हो रहा है, यानी कि जो तुम्हारे ऊपर की 50 लाइन है उसमें कोई एरर नहीं है, उसके नीचे वाली एरर है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, फिर नीचे 25 लाइन के बाद लिखोगे, फिर ऐसे तुम करते जाओगे और तुम्हें अपना एरर मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली तुम ये समझो कि लॉग का मेन मतलब अभी ये है कि यहाँ पे जो कंसोल है, यहाँ पे ये चीजें प्रिंट हो जाए कि ये सच में फॉर लूप चल भी रही है या नहीं चल रही। मतलब हमारा काम क्या था, हमारा काम ये था कि हमारा जो वर्क है वो एक वर्क एनक्यू हो जाए, मतलब एक वर्क टास्क शेड्यूल हो जाए। और जो वर्क था वो हमारा ये था कि हम एक फॉर लूप चला रहे हैं, ठीक है। अगर वो टास्क शेड्यूल हुआ तो वो फॉर लूप हमें यहाँ पे दिख जाएगी, एक एक करके जो चीज़ आएंगी दिख जाएगी हमें यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आ रही है ना, अपलोड दिस, तो ऐसे हमें दिख जाएंगे। अगर नहीं होगा शेड्यूल तो हमें नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ये चीज़ हो रही है नहीं। अब देखो ये एक एरर दे रहा है, एरर क्या है, हमें बेसिकली यहाँ पे रिटर्न करना है चीज़। देखो ना यहाँ पे रिटर्न कर रहा है ना रिजल्ट, तो हमें रिटर्न रिजल्ट करना है। सो रिजल्ट का मतलब ये है कि रिजल्ट मतलब ये सक्सेस हुआ, जो तुम्हारा टास्क तुमने शेड्यूल करा था वो सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर ये फॉर लूप पूरी चल गई तो मतलब हमारा टास्क सक्सेस हो गया, और अगर नहीं चली तो हमारा टास्क क्या हो गया, फेल हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे, एक ट्राई कैच बॉक्स में लगाएंगे। तो हमने बोला ट्राई, और एक हमने डाल दिया कैच, ठीक है। कैच में हमें एक्सेप्शन डालना होता है। सो ट्राई में हमने डाल दिया ये। तो हम ट्राई और कैच का मतलब क्या होता है, एक मिनट में इसको बेसिकली पूरा लिख दूं फिर समझाता हूँ। रिजल्ट रिटर्न, सॉरी, रिटर्न रिजल्ट डॉट फेलियर, ठीक है। अब देखो ट्राई कैच का मतलब ये होता है कि ट्राई कैच का मतलब ये होता है कि जैसे ट्राई करो, मतलब एक एक लाइन पे जाओ और ट्राई करो, जहां भी एरर आ जाए वो कैच में आ जाओ। मतलब ट्राई करो और अगर एरर आ रहा है तो वो कैच में चले जाता है। तो मैंने बोला कि अगर ये फॉर लूप पूरा चल गया तो रिटर्न सक्सेस कर दो, मतलब तुम्हारा रिजल्ट सही है, मतलब तुमने पूरा काम कर दिया है। अगर तुम्हारा कैच है तो तुम्हारा जो टास्क है वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, वो फेलियर हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको हम एक बार चला के देख लेते हैं कि हमारा जो लॉग है, लॉग के अंदर ये जो चीज़ है, जो ये जो आई है वो चल रही है कि नहीं चल रही, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रन हो रहा है, ग्रेडल वेट रनिंग चल रहा है। अभी तक हमने जो हमारा टेक्स्ट व्यू लगाया था उसमें हमने कुछ नहीं करा। अभी तक हमने ये नहीं प्रिंट कराया कि हमारा टास्क कितना कंप्लीट हो गया कितना नहीं हुआ। वो हम अगले थोड़ा मतलब एक बार रन कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि होता है नहीं। तब तक मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो हमने लॉग के अंदर लिखा है ये क्या चीज़ है। सो देखो तुमने की वैल्यूज़ के बारे में सुना होगा। सो की वैल्यूज़ के बारे में जिसने सुना है बता दो क्या होता है की वैल्यूज़, जिसको भी पता है। लाइक अनम्यूट कर लो, बता दो कि क्या होता है।
हेलो गाइस मैं हमने ऑडिबल? वैसे डिस्कस कर रखा है की वैल्यू बेस तो काफी पिछले सेशंस में भी। ओके 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 ओके, हाँ इसीलिए मैं पूछ रहा हाँ, हूँ कि की वैल्यूज पेयर क्या होता है। अगर आप लोगों ने सेशन अच्छी तरह लिया होगा तो पता होगा। यस यस यू कैन सर यू जैसे ही क्या डिक्शनरी होती है ना, सर या जैसे डिक्शनरी की तरह काम करता है, की वैल्यू भी एक की होगी और उसकी एक वैल्यू होगी, जैसे बुक होगी और किसी बुक का नाम हो गया या वैसे। या हाँ नाइस नाइस नाइस, चलो बढ़िया। सो देखो यहाँ पे हमने सेम चीज की है। हमने लॉक के अंदर एक की दे दी कि माई टैग नाम से की है। सो बेसिकली हम की दी क्यों है? बेसिकली हमने की इसलिए दी है जिससे कि हम अपने जब लॉक कैट खोलें, लॉक कैट में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। लाइक देखो जब हम इसको हटाएंगे ना तो देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। तो हमको एक बेसिकली डिफाइन करना होता है, हमें ये देखना होता है कि हमने जो लॉग लगाया वो चीज कहाँ पे प्रिंट हो रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने जैसे यहाँ पे की लिखी है माई टैग, तो बेसिकली अगर हमें चाहिए कि माई टैग में लिखा क्या है, मतलब माई टैग में क्या प्रिंट होगा, तो बेसिकली हम उसको यहाँ पे फिल्टर कर लेंगे काइंड ऑफ। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब जो भी लॉग में जो भी आएगा वो सिर्फ वो आएगा जो माई टैग के अंदर हो रहा होगा। मतलब अगर ये चीज प्रिंट, अगर ये लॉग काम कर रहा होगा तो वो यहाँ पे शो होगा, नहीं काम कर रहा होगा तो नहीं होगा। तो बेसिकली हमारा ऐप रन हो गया, आप देखते हैं काम कर रहा है या नहीं। सो हमने क्या टास्क दिया था अपने ऐप को, हमने टास्क ये दिया था कि आई की वैल्यू 0 से लेकर 2 लाख तक चल जाए और वो हमारा एक एक करके हमारे लॉक कैड में वो प्रिंट हो जाए। तो देखते हैं वो प्रिंट हो रहा है या नहीं। सो ये हमारा ऐप है, देखते हैं। हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक करा, ये देखो लॉक कैट चलने लग गया। ये देखो ये लॉक कैट चलने लग गया। ये एक एक करके सारे एक एक करके लूप में जा रहा है, जा रहा है ना। दो दो 22,000 23,000। सो ये बेसिकली ऐसे चलते जाएगा और ये तब कब तक खत्म होगा, जब ये वैल्यू 2 लाख तक पहुंचेगी। ठीक है, तो ये टास्क हमारा चल रहा है। अब हमें क्या चाहिए, हमने बोला था कि हमने टेक्स्ट व्यू भी लगाया, तो हमें ये चाहिए कि जो हमने टेक्स्ट व्यू लगाया है वो हमें उसकी प्रोसेस बता दे कि हम अभी रनिंग में है या फिर काम खत्म हो गया है या फिर क्यू में है, मतलब। तो हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम एक चीज लगाएंगे, हम बोलेंगे वर्क मैनेजर। हमने बोला वर्क मैनेजर डॉट गेट वर्क इन्फो बाय लाइव डेटा। सो बेसिकली ये क्या करेगा, जो भी वर्क के जो भी काम हो रहा है उसकी इन्फो लेके आएगा। सो इसके अंदर हमें आईडी देनी पड़ेगी जो भी हमारी रिक्वेस्ट है। सो हमने आईडी दी वर्कर रिक्वेस्ट डॉट आईडी। ठीक है, और फिर इसके अंदर हमने क्या करा, अंदर हम ऑब्जर्व करेंगे, उसके अंदर हम पहले अपना इंस्टेंस देंगे अपनी एक्टिविटी का और एक ऑब्जर्व फंक्शन देंगे। चलो, तो देखो ये जो इट है ना, यहाँ पे इट दिख रहा है ना, इट के अंदर सारी चीजें स्टोर हैं, जो भी हमारा लाइव डेटा होगा, मतलब जो भी हमारा काम हो रहा होगा, मतलब प्रोसेस में होगा या फिर वो एन क्यू में होगा या फिर वो रनिंग चल रही होगी, मतलब चल रहा होगा हमारा काम या फिर हमारा काम हो गया होगा, वो सारी चीज इट में स्टोर है। तो हम इस इट को आप प्रिंट करा देंगे। तो हमने जो हमारा टेक्स्ट व्यू था उसका नाम क्या दिया था, टेक्स्ट व्यू। ये देखो हमने इसकी आईडी क्या दी थी, टेक्स्ट व्यू। ये तो आता होगा ना, टेक्स्ट व्यू में टेक्स्ट प्रिंट कैसे कराते हैं। तो हमने बोला टेक्स्ट व्यू डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, अब देखो इट के अंदर गए, इट के अंदर हमें चाहिए स्टेट, इट के अंदर हमें स्टेट चाहिए कि कौन सी स्टेट में है, वो अभी रनिंग में है या फिर वो फिनिश हो चुका है या फिर वो एन क्यू में है, एन क्यू मतलब वेटिंग लिस्ट में। सो हमने बोला कि इट डॉट स्टेट डॉट नेम। ठीक है, तो अब देखते हैं अब ये कैसे रन करेगा। अब बेसिकली इसको क्या करना चाहिए, जो भी प्रोसेस हो रही है वो वहां पे शो होनी चाहिए, मतलब हमारे जो टेक्स्ट व्यू है उसमें शो होनी चाहिए। तो इसको रन कराते हैं। सो ये रन हो रहा है, ये हमारा फोन है। सो चेंजेस अप्लाई हो रहे हैं। और अब देखते हैं ये चीज काम कर रही है या नहीं। सो देखो कुछ दिखा तुम्हें। चलो वापस करते हैं, मैं वापस स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। मैं स्टार्ट पे क्लिक करूंगा, सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले एन क्यू होना चाहिए, मतलब सबसे पहले चीजों को हम लाइन में लगा रहे हैं। फिर उसके बाद हम चीजों को काम कर रहे हैं, मतलब जैसे जैसे तुम एक लाइन में लगे हो, तुम्हारा नंबर आ गया, तुम्हारा काम हुआ और फिर तुम्हारा काम खत्म हो गया। तो 3 चीजें, सबसे पहले एन क्यू होगा, फिर रनिंग होगी, फिर सक्सीड होगा। तो हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट पे क्लिक होगा, एन क्यू दिखा, रनिंग दिखी और सक्सीड हो गया। अब सर अब बोल रहे होगे सर ये इतनी जल्दी जल्दी कैसे हो रहा है, इतनी जल्दी जल्दी ऐसे हो रहा है, हमने अपने काम को क्या दिया है, हमने अपना काम सिंपल यही तो दिया है, हमने बोला कि फॉर लूप चलाओ
सिंपल हम एक फॉर लूप ही तो चला रहे हैं, तो फॉर लूप चलाने में कितना ही टाइम लगेगा, तो जितना वो टाइम ले रहा है, अगर तुम यहाँ पे 2 लाख लिखा है ना, यहाँ पे तुम 10 लाख कर दो, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, अगर तुम 5 लाख कर दो टाइम ज्यादा लगेगा, तो 20,000 कर दो, तुम्हें मतलब रनिंग दिखेगा ही नहीं, मतलब रनिंग ऑर्डर जो होगा वो इतनी जल्दी डिसअपियर होगा कि फॉर लूप कितनी जल्दी काम चलेगी। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या हो गया, ये हमारा वर्क मैनेजर हो गया। देख रहे हो तुम कितना सिंपल तरीका है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस एक वर्क मैनेजर का इंस्टेंस बनाना है, फिर एक वर्क रिक्वेस्ट बनानी है, उसके बाद इसको एनक्यू कर देना है, बस तीन लाइन ऑफ कोड है। ये जो हमने इसलिए लिखा है जिससे हमें दिख जाए कि हमारा वर्क कहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, सो ये हो गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या, हमने सबसे शुरुआत में बोला था कि हम एक इंस्टाग्राम टाइप का ऐप बनाना चाहते हैं। सो हमें चाहिए कि जब हम पोस्ट कर रहे होते चीज़ों को, तो वो अगर नेटवर्क हमारा स्टेबल है या फिर हमारा नेट ऑफ है, तो वो पोस्ट ना करे, वो एक एनक्यू कर दे, मतलब चीज़ों को काम पे लगा दे। अगर वो चीज़ अगर जब और फिर जब भी अगर ऐप हमारा बैकग्राउंड से हट भी जाए, अगर वो चीज़ मतलब जब भी हमारा नेट ऑन हो, तब वो अपना अपना काम खत्म कर दे, अपना टास्क कंप्लीट कर दे। सो हम देखते हैं कि कंस्ट्रेंट कैसे लगाते हैं। सो हम बेसिकली सबसे पहले एक कंस्ट्रेंट बनाएंगे कि हमें क्या कंस्ट्रेंट लगाना है। सो हमने बोला वेल एक कंस्ट्रेंट, तो बेसिकली कंस्ट्रेंट में हमने लिखा कंस्ट्रेंट्स डॉट बिल्डर। अब हमें क्या क्या कंस्ट्रेंट लगाने हैं। सो हमने पहले बोला कि सेट, देखो यहाँ पे जैसे मैंने सेट लगा ना, देखो कितनी सारी चीजें आ गई। सबसे पहले क्या दिखा रहा है, सेट रिक्वायर्ड नेटवर्क टाइप, मतलब इससे हम क्या कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं कि हमारा जो नेटवर्क है वो स्टेबल होना चाहिए और जो नेटवर्क है वो कनेक्टेड होना चाहिए। देखते करते हैं या नहीं। सो ये किया, तो हमने बोला इसके अंदर हम लिखेंगे नेटवर्क टाइप डॉट कनेक्टेड। इसके अंदर देखो क्या क्या चीजें हैं। एक नेटवर्क टाइप डॉट कनेक्टेड मतलब हमारा फोन कनेक्ट होना चाहिए तभी वो टास्क कंप्लीट होगा। मीटर्ड होना चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड मतलब जरूरी नहीं है कि नेटवर्क कनेक्टेड हो। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो तुम देख लेना इसमें। सबसे मैं अभी ये कर रहा हूँ कि हमने बोल दिया कि हमारा कंस्ट्रेंट ये है कि जब तक हमारा नेट ऑन ना हो तब तक वो अपना जो टास्क है वो परफॉर्म ना करे, हमने ये कर दिया। ठीक है, सो अब इसको हम कंस्ट्रेंट हमने लगा दिया कि हमारे जब तक नेट ना हो तब तक वो काम ना करे। चलो आगे आते हैं। अब हमने वर्क रिक्वेस्ट में क्या करा, वर्क रिक्वेस्ट में हमने सीधे बिल्ड कर दिया था, हमें अपना कंस्ट्रेंट भी तो देना यहाँ पे। सो हमने बोला कि सेट कंस्ट्रेंट, हमने इसको बोला कि जो हमने कंस्ट्रेंट बनाया है जो बोल रहा है कि तुम जब नेटवर्क कनेक्टेड हो तभी हो, सो उसको तुम इम्प्लीमेंट कर दो। तो हमने सेट कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट कर दिया। ठीक है, अभी एरर क्या दे रहा है, टाइप मिसमैच्ड। ओके वेट, सो बेसिकली बिल्ड नहीं करा मैंने इसको, समझ गया। ओके, सो बेसिकली सारी चीज़ों को बिल्ड करना पड़ेगा अपन को ना। सो अब ये क्या करेगा, अब वर्कर रिक्वेस्ट को हमने क्या बोल दिया, अब हमने बोल दिया कि अपलोड वर्कर में जो भी काम है वो करो, लेकिन इसके साथ कंस्ट्रेंट भी ले जाओ कि जो हमारा नेटवर्क है वो कनेक्टेड होना चाहिए। अगर नेटवर्क कनेक्टेड नहीं है तो तुम काम नहीं करोगे। देखते हैं ये चीज़ काम करती भी है कि ऐसे ही बस। सो हमने रन करा अपने आप को। ये हमारा फ़ोन है। ओके, सो बिल्ड रन हो चुका है। अब हम देखेंगे। एंड्रॉइड स्टूडियो बंद मत हो भाई। ऑन है तो नेट ऑन है, तो फिर वो हमारा टास्क कंप्लीट कर दे। टास्क हमारा क्या है, 1 से लेके 2 लाख तक प्रिंट कराना है। ठीक है, तो देखो अभी मेरा फोन दिख रहा है तुम सबको, हमारे फोन का नेट ऑन है ना, ऊपर देखो 4G लिखा है, नेट ऑन है। हम अपना टास्क स्टार्ट करते हैं, देखते हैं होता है। देखो रनिंग हो गया, सक्सीड हो गया, काम हो गया। अब हम एक काम करते हैं, नेट ऑफ कर देते हैं। नेट हमने ऑफ कर दिया, दिख रहा है नेट ऑफ हो गया ना। सो अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर दिया, अब देखो अभी रनिंग नहीं हो रहा, अब इसने एनक्यू कर दिया, सिर्फ एनक्यू आ रहा है, सक्सीड आएगा ही नहीं। देख रहे हो जादू। मतलब हमने इसको बोला कि तुम्हारा जो टास्क है वो बेसिकली क्या है कि तुम्हारा अगर नेट ऑफ है तो तुम उस चीज को आगे मत बढ़ाओ। सो उसने क्या कर दिया, सिंपल अभी स्टेज कौन सी है, स्टेट ये है कि एनक्यू चल रहा है। एनक्यू चल रहा है मतलब हमने उसको एक वेटिंग लिस्ट में लगा दिया कि जब भी मेरा नेट ऑन हो तब ये टास्क परफॉर्म करे, अभी मत करो टास्क। ठीक है, सो देखो अभी इसमें एक जादू और दिखाते हैं। इसमें एक जादू ये है कि हम लॉकेट में आते हैं। हमने लॉकेट में बोला था कि जो हमारा टास्क है वो ये पुराना ही लॉकेट चल रहा है अभी तक ना। एक काम करते हैं, हमारी जो लूप है ना वो बहुत बड़ी चला दी है, तो वो जब तक लॉकेट में प्रिंट होगा तब तक
बहुत टाइम खा लेगा, तो हम इसको लूप को बहुत छोटा कर देते हैं, हम इसको लूप को 200 कर देते हैं, क्योंकि अब हमारा काम ये नहीं है कि अब हमारा काम ये नहीं रह गया कि हम लोग देखें कि वो काम कर रहा है या नहीं, काम तो कर रहा है, लेकिन अब वो और किस अच्छे तरीके से काम कर रहा है वो हमें देखना है। सो ये पुराना टास्क ही चल रहा है ना अभी तक। ये देखो इसने यहाँ पे 2 लाख पे जाके खत्म कर दिया, अब ये लूप नहीं चल रहा था। सो बेसिकली हमने कुछ नहीं किया, हमने अपनी लूप को छोटा कर दिया, बस हमने बोला कि 0 से 200 तक ही चलो। श्रेयांश पुराने लॉक के डिलीट कर दे। हाँ ठीक है। सो अभी हम फ्रेश पे आ गए और देखो हमारा जो ये है ठीक है। तो अभी हमारा नेट की कंडीशन क्या है, नेट कंडीशन ऑफ है, नेट ऑफ है। हम स्टार्ट करेंगे, ये हो गया एनक्यू। ठीक है, अब जादू देखना, मैंने इस ऐप को हटा के अपने बैकग्राउंड से हटा दिया, मैंने ऐप बैकग्राउंड से हटा दिया है, अभी मेरा नेट ऑफ है। मैंने इसको क्या बोला था, मैंने इसको बोला था कि जब हमारी लूप जब हमारा नेट ऑन हो तब बेसिकली वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो। नेट हमारा ऐप बैकग्राउंड से हट चुका है, हमने नेट ऑन किया। ठीक है, हमने नेट ऑन किया। अब देखते हैं कि यहाँ पे लॉकेट में आ रहा है कि नहीं। ये देखो लॉकेट में आ गया ना, हमारा बैकग्राउंड से ऐप हट चुका है। देखो बैकग्राउंड में कोई ऐप नहीं है, फिर भी ये लॉकेट चल गया। क्यों चल गया? क्योंकि हमने उस चीज़ को शेड्यूल कर दिया था। हमने शेड्यूल कर दिया था कि वो जब भी नेट ऑन हो हमारा तब वो बेसिकली 200 तक लूप चला दे। सो देखो ये लूप चल चुका है। ठीक है, तो ये बेसिकली ब्यूटी है वर्क मैनेजर की कि हम चीज़ों को बैकग्राउंड में टास्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंस्ट्रेंट। अब हमें और भी चीज़ें लाइक डेटा का मतलब क्या है। हमारे अगला टॉपिक ये है कि जैसे मान लो हम मेन एक्टिविटी में है, हमने बोला था कि मेन एक्टिविटी में हम काम नहीं कर रहे, काम तो हम अपलोड में कर रहे हैं। तो हो सकता है कि हमें मेन एक्टिविटी से कुछ डेटा अपलोड वर्कर में पास करवाना हो। ठीक है, लाइक जैसे मैंने बोला यहाँ पे लूप 0 से लेकर 200 तक कर दो, तो 200 तो मैंने हार्ड कोडेड करा है ना। यहाँ पे मेरे को चाहिए कि मैं मेन एक्टिविटी से एक नंबर पास करूं जो जितने नंबर तक चले। जैसे मान लो मैंने मेन एक्टिविटी से बोला कि तुम 300 तक लूप चलाओ, मैंने मेन एक्टिविटी से एक वैल्यू पास कर दी 300, और अपलोड वर्कर को बोला कि तुम जो भी वैल्यू आई है वहां तक चलाओ। ठीक है, तो मैंने मेन एक्टिविटी से अब मैं डेटा कैसे पास करूंगा। तो डेटा पास करने का तरीका मेन एक्टिविटी में ये होता है, लाइक मैंने बोला वैल्यू, मैंने एक वेरिएबल बनाया डेटा का, जो कि एक डेटा टाइप का वेरिएबल है, इज इक्वल्स टू डेटा डॉट बिल्डर, डेटा डॉट बिल्डर। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट पुट इंट, इसकी मैंने की दे दी काउंट। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। ओके, आई एम सॉरी फॉर नॉइज। सो देखो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि हमको डेटा एक एक्टिविटी मेन एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में पास करना है। तो हमने बोला कि एक डेटा नाम का वेरिएबल बनाओ, वो उसके अंदर हम एक इंटीजर पास कर रहे हैं। पुट इंट मतलब हम एक इंटीजर पास कर रहे हैं जिसका नाम हमने जिसकी की दे दी हमने काउंट, और जिसको हमने बोल दिया 300। ठीक है, तो मैंने इसको बोल दिया कि तुम 300 पास कर दो अपनी अपलोड वर्कर जो फाइल है उसमें, और फाइनली हम इसको बिल्ड कर देंगे। ठीक है, सो इसको बिल्ड कर दिया हमने। अब हमने ये डेटा तो बना दिया, लेकिन हमें ये अपने रिक्वेस्ट के साथ भी तो भेजना पड़ेगा। सो बेसिकली सारा जो खेल है वो रिक्वेस्ट का है, मतलब रिक्वेस्ट के साथ जो जो तुम चीज़ें पास कर दोगे वो चीज़ें वहाँ पे आ जाएंगी। सो हमने बोला सेट इनपुट डेटा, और हमने जो डेटा बनाया था वो हमने पास कर दिया यहाँ पे। तो अब देखो अब ये क्या करेगा, यहाँ से मेन एक्टिविटी से अपलोड वर्कर में डेटा पास हो गया है, मतलब यहाँ से डेटा चला गया अपलोड वर्कर में। अब अपलोड वर्कर में अगर चला गया तो वहाँ से हमें रिट्रीव भी करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हमें वो डेटा वहाँ से आया वो यहाँ पे देखना पड़ेगा। सो देखते हैं वो डेटा आता है कि नहीं। सो हमने बोला कि काउंट की वैल्यू हो गई इनपुट डेटा डॉट गेट इंट, और गेट इंट की वैल्यू हमने क्या की, हमने देखो यहाँ पे की क्या पास करी थी, हमने की यहाँ पे पास करी थी काउंट। सो हमने की यहाँ पे क्या पास करी, काउंट। तो यहाँ पे हमें काउंट ही डालना पड़ेगा। ठीक है, की वैल्यू का मतलब तुम समझ रहे हो, जैसे एक सबसे सिंपल एग्जांपल की वैल्यू का ऐसा समझो, जैसे तुम्हारा वॉलेट कहीं गिर गया, ठीक है, दूसरे किसी सज्जन को वो वॉलेट मिल गया। अब वो उसने अनाउंसमेंट करा दिया कि भाई मेरा किसी का वॉलेट गिर रहा है, आके ले जाओ। अब 4 लोग पहुंच गए तुम्हारे साथ।
अब तुम उस चीज को वेरीफाई कैसे करोगे कि भाई अब वो जो सामने वाला बंदा वो वेरीफाई कैसे करेगा कि वॉलेट तुम्हारा है कि किसी और बंदे का है। सो तुम्हारे पास कुछ की होनी चाहिए ना देने के लिए कि भाई हमारे पास हमारे उसमें मम्मी का फोटो है, जो भी है, जिसका जो भी सामान है। सो वो चीज होती है की का मतलब वहां से आता है, जनरेट होता है। ठीक है, तो ऐसी एक्टिविटी में होता है लाइक तुमने अगर मेन एक्टिविटी से 2 वेरिएबल ए और बी पास करे हैं, ठीक है, तो जब तुम दूसरी एक्टिविटी में जाओगे तो वहां पे बोलोगे कि भाई मेन एक्टिविटी से दो चीजें मतलब मेन एक्टिविटी से कुछ पास होके आया, मेरे को वो दे दो। अब वो जो दूसरा एक्टिविटी है वो बोलेगा कि तुमको हमारे यहाँ से बहुत सारा डेटा आया है, तुमको क्या चाहिए। सो अगर तुमको ये देखना है कि मतलब तुमको अगर एक पर्टिकुलर ए की वैल्यू चाहिए या बी की वैल्यू चाहिए, तो तुम उसको बोलोगे कि भाई हमको ए की वैल्यू दो या बी की वैल्यू दो। तो वो वहाँ पे की का कॉन्सेप्ट ये होता है। तो मैंने इसको बोला कि जो वहां से काउंट नाम के की के साथ जो भी वैल्यू आई है वो मेरे को दे दो, और कॉमा एक डिफॉल्ट वैल्यू। अब डिफॉल्ट वैल्यू का क्या चक्कर होता है, मान लो वहां से कोई काउंट नाम की कोई की पास ही नहीं हुई हो, तो अगर इसने बोला कि अगर कोई काउंट नाम की वैल्यू पास नहीं हुई हो तो तुम डिफॉल्ट वैल्यू 0 ले लेना खुद की। ठीक है, अगर कुछ नहीं पास हुआ तो तुम 0 ले लेना। सो ये हो गया काउंट। अब मैंने बोला था कि हमें लूप कहाँ से कहाँ तक चलानी है, 0 से लेके जो भी काउंट आ रहा है वहां तक। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे 0 अंटिल फंक्शन होता है अंटिल काउंट। ठीक है, अब इसको रन कर देते हैं। सो इसको रन करेंगे तो अब ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके 300 तक चलेगा, क्योंकि हमने काउंट में पास क्या किया था, यहाँ से 300 पास किया था। सो अब क्या ये लूप 300 तक चलेगा। सो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये होता है बेसिकली काउंट का। मतलब हम वेरिएबल एक 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 एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में पास कर रहे होते हैं। ये मेरा फोन है, अभी ये रनिंग चल रहा है। हो जा जल्दी हो जा। हाँ, सो ये रन हो गया। सो देखो लॉकेट में दिखाता हूँ मैं कि ये 300 तक चल रहा है। सो स्टार्ट कर दी मैंने, ये देखो 300 तक चला, 299 तक, क्योंकि अंटेल जो है वो एक पीछे तक चलता है। ठीक है, तो 0 से लेके 299 तक चला, तो हमने डेटा एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में पास कर लिया। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हो गई। ये होता है वन टाइम रिक्वेस्ट का। ठीक है, अब हम दूसरी चीज़ पढ़ेंगे जो होता है पीरियोडिक। मतलब हमें चीज़ों को बेसिकली पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद हमें रिक्वेस्ट कराना है। सो अभी हमने बटन पे क्लिक करने पे बोला था कि वन टाइम शेड्यूल करो। अब हम दूसरा फंक्शन बना लेते हैं जिसमें हम पीरियोडिक शेड्यूल करेंगे। तो हमने बोला पीरियोडिक शेड्यूलर। ठीक है, ये दूसरा फंक्शन है। अब इस फंक्शन को हम बना लेते हैं। सो हमने बोला प्राइवेट फंक्शन पीरियोडिक शेड्यूलर। ठीक है, अब देखो सेम चीज वही रहती है, सेम चीज रहती है। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, वर्क मैनेजर का एक इंस्टेंस बनाना होगा। सो हम बनाते हैं वर्क मैनेजर का इंस्टेंस वेरिएबल वर्क मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस गेट एप्लीकेशन कांस्टेंट। सेम चीज है, एप्लीकेशन कांस्टेंट। हाँ, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, एक रिक्वेस्ट बनानी होगी। सो हम एक रिक्वेस्ट बनाएंगे पीरियोडिक रिक्वेस्ट नाम से। पीरियोडिक रिक्वेस्ट हम कैसे बनाएंगे, हमने बोला था कि हमने जब वन टाइम रिक्वेस्ट बनाई थी तो हमने क्या बोला था, वन टाइम वर्क रिक्वेस्ट है। हमें अगर पीरियोडिक बनानी तो हम बोलेंगे पीरियोडिक। देखो पीरियोडिक जैसे तुमने लिखा ना, सबसे ऊपर उसने सजेशन दे दिया, पीरियोडिक वर्क रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर बी कैपिटल डॉट बिल्डर। इसके अंदर तुम्हें क्लास देनी पड़ेगी जो हमने वहाँ पे भी दी थी। हमने बोला था कि हमें कौन सी क्लास का डेटा तुमने जो भी काम करोगे वो कौन सी क्लास में है। तो हमने बोला कि अपलोडर क्लास में हमारी वो अपलोडर वर्कर कॉलम क्लास डॉट जावा। Just a second, Shreyansh, just want to know like how many minutes will be also, I mean, like how much minute it will take to like complete the session. Just 5 minutes. I will be wrapping up in 5 minutes. Just 5 minutes. Great, thank you. Yeah. सो बिल्डर डॉट जावा। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, हमने ऊपर सिंपल एक जावा जो हमारी क्लास थी जिसमें हमारा ये डाला था कि हमें क्या काम करना है वो है। लेकिन अभी पीरियोडिक है, पीरियड में हमें क्या चीज और पास करनी पड़ेगी कि कितने इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चीज को रिपीट करना है। सो हमने इसको बोला कि 16 मिनट के बाद रिपीट करना है। सो हमने बोल दिया 16 कॉमा। अब हमें टाइम की यूनिट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो टाइम की यूनिट देते हैं।
तो हमने बोला अभी तो हमने 16 बोल दिया, सो हमने बोल दिया कि टाइम यूनिट डॉट, देखो टाइम यूनिट में सेकंड सिखा रहा है, मिनट सिखा रहा है, डे सिखा रहा है, आवर सिखा रहा है, मतलब तुम 2 दिन बाद शेड्यूल करना चाहते हो, मतलब मतलब एक टास्क हर 2 दिन बाद चले तो उसको तुम डेज में कर सकते हो, आवर्स में कर सकते हो, मिनट्स में कर सकते हो, सेकंड में कर सकते हो। लेकिन ये जो वर्क मैनेजर है इसके अंदर एक कंस्ट्रेंट ये है कि तुम मिनिमम टू मिनिमम 15 मिनट्स का शेड्यूल कर सकते हो। मतलब अगर तुम्हें शेड्यूल करना है कोई टास्क तो तुम मिनिमम 15 मिनट का कर सकते हो, उससे कम का नहीं कर सकते। मतलब तुम चाहते हो कि एक टास्क हर 60 सेकंड बाद या फिर हर 30 सेकंड बाद चले तो तुम वो नहीं कर सकते, तुम्हें मिनिमम 15 मिनट का अपना कंस्टेंट रखना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 16 रखा है ना। सो बेसिकली अभी तुम्हें बेसिकली मैंने टाइम यूनिट लिखा, टाइम यूनिट डॉट मिनट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये हर 16 मिनट बाद जो तुम्हारा टास्क है, जो फॉर लूप तुम्हारा चल रहा है एक से लेके जितने भी तक भी चल रहा है, सो बेसिकली वो क्या करेगा, एक से लेके जहाँ तक भी वो फॉर लूप चल रहा है, सो वहाँ तक वो हर 16 मिनट बाद वो फॉर लूप चलाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम आगे करते हैं, इसको बिल्ड और कर देते हैं। सो डॉट बिल्ड, ठीक है, डॉट बिल्ड। और जो हमने वर्क मैनेजर बनाया था उसके लिए उसको हम एनक्यू कर देते हैं। बस हमने बोला था कि 3 ही चीज़ होती हैं, एक तो वर्क मैनेजर बनाओ पहले, फिर रिक्वेस्ट बनाओ और फिर उसको एनक्यू मार दो। सो एनक्यू कर दिया हमने पीरियोडिक वर्क रिक्वेस्ट, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, इसको हम चला के देखते हैं। तो अभी देखो हमने ये डेटा तो पास करा नहीं है यहाँ पे, डेटा हमने कहाँ पे पास करा था, हमने सिंगल वाले में पास करा था, तो ये डेटा का हटा देते हैं, हम सिंपल इसको 0 से लेके 300 तक चलाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं काम करता है नहीं, ठीक है। काम करना चाहिए क्योंकि हमने बटन पे क्लिक ऑन लेसन क्या लगा रखा है, पीरियोडिक शेड्यूलर, और पीरियोडिक शेड्यूलर हमने एक बेसिकली एक शेड्यूल कर दिया हमने। सो रन करते हैं, और हम लॉकेट भी खोल लेते हैं जिससे हमें दिख जाए कि वो रन हो रहा है। ओके, सो हमारा ऐप रन हो चुका है। स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट पे क्लिक किया मैं, ये देखो इसने 300 दे दिया, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ ये है कि इसने अभी सक्सीड नहीं दिखाया है ना, सक्सीड नहीं दिखाया, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये क्या है कि ये पीरियोडिक ट्रैप चल रहा है। मतलब अभी ये अगले 15 या हमने जितना यहाँ पे 16 लेगा ना, तो अगले 16 मिनट ये फॉर लूप फिर चलाएगा। लेकिन अब हमारे पास 16 मिनट तो है नहीं। सो जब तुम इसको खुद ट्राई करना, खुद करके देखना, तुम्हें खुद से पता चलेगा कि जब तुम 16 मिनट रुकोगे ना तो 16 मिनट बाद ये अपने आप फॉर लूप चला के दे देगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल, ये हमारा पीरियोडिक रिक्वेस्ट हो गया। इससे पहले हमने वन टाइम पढ़ा था। सो अब समझ में आ गया होगा ना कि जो हमारे चीज़ों को शेड्यूल कैसे करते हैं, ठीक है, नेट नोटिफिकेशंस कैसे आते हैं, अलार्म कैसे काम करता है, ठीक है। चीज़ों को वो शेड्यूल ही करता है बेसिकली, कि हमारा जो जो हमने टाइम दिया है वो बेसिकली उस टाइम के बाद वो चीज़ अलार्म मतलब हमारे रिंगटोन शो मतलब बजने लगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं वर्क मैनेजर में। ये बहुत क्विक ओवरव्यू था एक वर्क मैनेजर का, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सप्लोर करना तुम लोग। सो दैट्स ऑल। Now I will hand over the session to Ubesh. Thank you. So I mean, Uvesh, I can take it from here. I mean, you have like things. Yeah. So I hope you all enjoyed the session. You all got something new to learn today. And with this, we have final app submission for Android study jams. An app will be assigned and the best selection will be submitted to Google. So guys, buckle up your belts, and from here, we hope that you have learned a lot and it's time to implement it and gain something from it. Show your presence. The idea of the app submission will be given to you, and you have to make the app on your own and submit it, and the best app will be selected and it will be provided to it will be submitted to Google. I hope you are clear about it. So I thank everyone for being patient. Thank you very much for your precious time and consideration. We learned how to make Android apps. Also, we learned Kotlin, Android Studio, and how to create wonderful apps. During the Android study jams, you get something we hope you get something constructive from these sessions.
Thank you for amazing support and patience and efforts of learning you showed. At last but not the least, I would say that it's just the beginning, and good beginning is half done. Good luck for your Android exposure ahead, and hope for the interesting apps from your side. Now I hand over to Vaibhav Patak, our GDSC lead. Thank you so much, Vish. Thank you so much. So, good afternoon, everyone. Thank you so much for joining us today. So, first of all, I'm here to present vote of thanks from the GDSA and whole NIT Mirpur team. So, first of all, I would like to thank our faculty advisor, sir. He's not here, Professor Dr. Nathan Gupta, sir. And so after that, I would like to thank the people who were behind the sessions, who were working hard for making the presentations. You all guys know who are there. I mean, Uvesh, we are just having some kind of background noise. Can you please mute yourself? Yeah. So I would like to thank the people who were behind the sessions, making the presentation and all doing all the hard work. So we have Abhi Khandelwal, who is the Android facilitator and also the team lead of Android for NIT Hamirpur, GDC NIT Hamirpur, and we have Shreyans Jain as well, and the Rashika Devesh, she's not here. So thank you guys. Thank you for doing putting all the hard work. After that, I would like to congratulate you all guys. You really have shown the energy and the zeal. I mean, it was really awesome. Like you guys have done 3 sessions, and this was the most advanced session on the Android. So I really congratulate you all. This was amazing. And now I want to talk about more about the GDSC. So we are planning to mentor 2 or 3 students on Android for building two Android projects by the Android team. So we will be taking selections from you guys and also those who are in the group and they have not joined us today. So I mean that no problem, no issues. So since Vish already said like there will be kind of a not a competition, just an app submission from you guys. So those who will be submitting apps, please try to make them. If you guys have any problem, put that in WhatsApp group. We'll be solving those issues. We have the team will be taking the problems, so you guys have the best opportunity to be guided in by the GDSC mentors, and we'll be also trying to put on the expert sessions. We'll be also trying that, and Abhi is putting all his efforts to bring that session as well. So thank you so much guys, thank you so much. I wish you all the best for your future endeavors, and thank you so much. If you have any questions, you can put that in chat. Thank you, sir. Thank you so much. Yeah, Vaibhav, we can take some 5 minute of Q&A session. Yeah. You can turn on your mic or video, you can, if you like. Yeah, so I'm just putting the Let me, stop recording. recording. Thank you so much guys, and I'm just stopping the recording.